तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. Translation: There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. First, being enthusiastic. Second, endeavoring with confidence. Third, being patient. Fourth, acting according to regulatory principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. Fifth, abandoning the association of non-devotees and following in the footsteps of previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. So I think so we have covered out of the 6, 3. Now we'll try to cover the remaining 3. So before that we sang this song written by Srila Bhaktivinoda Thakur. So Bhaktivinoda Thakur has written one song per shloka. Every shloka has written one song, which many of us we may not be aware. So from shloka number 1 till shloka number 8, Bhaktivinoda Thakur has written a song, like what we saw now, 1. This was shloka number 3, what he has written. So very interestingly, like if you see acharyas, they really bring out the essence, the important thing, what we should learn, what we should catch. So here in this song, if you see, bhajane utsaha. So why do we need utsaha? Bhaktivinoda Thakur is saying, for bhajana. Utsaha required for performing our bhajan. Like whatever bhajan we have, for us bhajan is what? What is our bhajan? What is a bhajan for us? The bhajan what we sang? For us bhajan is our sadhana, our morning program, basic things. That will also, of course, that will be part of our tat karma pravartanat. Doing activities, tat karma pravartanat means doing those activities tat which are favorable for our Krishna consciousness. Tat karma pravartanat. So here is saying bhajane utsaha. So utsaha should be for bhajana. Means sometime it may happen that we may have a choice. Sometime we may stay outside and then we want to come to temple for morning program. It requires some utsaha to come. If we don't have utsaha, then why will come? So for utsaha we should have some, for bhajana, some utsaha. Like then second is saying is bhakti te vishwasa. Vishwasa for or faith or conviction on the process of bhakti, that the process of bhakti works. The process of bhakti is universal and process of bhakti is powerful. And it works for everyone. And it has worked in the past, it is working in the present, and it will work in the future also for me. That vishwasa, that faith. I was hearing that utsaha actually, it nourishes our faith. If someone has utsaha, then his faith will get nourished naturally. Next, preme labhe dhairya dhana. We should have dhairya or patience for achieving the result of our whatever activities we are doing. Like daily we recite during our morning program. So after 10 offenses, what do we say? 10 offenses we recite. Anyone who considers himself as a Vaishnava must carefully guard against all these 10 offenses so that quickly achieve the desired success, Krishna Prem. So many times we literally we recite it blindly at times. But then what happens is, are we getting Krishna Prem? So basically what Bhaktivinoda Thakur is telling here to all of us, see, even if you are not getting the result of your bhajana, you are doing bhajan with utsaha, you are following the principles of bhakti with vishwasa. But even after that, it may happen that you need to maintain patience. ऐसा नहीं कि जैसे प्रभुपाद ने last time we discussed, प्रभुपाद gave example in the purport that if someone is pregnant, some lady is pregnant, she can't expect a child within some few days. She has to wait for 9 months, 9 days at least. Then only child may come. So similarly, we may practice so many aspects of devotional service and we may not get result.
So we should not get discouraged. We should patiently continue with our practice of bhakti with the same utsaha, even if you're not getting result. That's what here Bhaktivinoda Thakur is saying. Bhakti anukula karma pravartane. That is what? Bhakti anukula karma pravartane means what? It's talking about which aspect in the shloka? Tat karma pravartanat. Engaging into those activities which are favorable for Krishna consciousness. And in the purport, Prabhupada writes, in this NOI purport, Prabhupada writes that when we are not following regulative principles sincerely, then our bhakti may come into danger. That is about tat karma pravartanat. Asat sanga taga visarjana. The asat sanga we have to do visarjana. Visarjana, like in Ganpati times, you do visarjana of Ganpati after that. We don't look after what happened to that Ganesh later. We do visarjan. और निर्माल्य we have. We do visarjan of निर्माल्य. We never look कि इसका बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ का केयर ले रहा है, क्या नहीं देखते हैं उसका. तो विसर्जन क्या करना है हमको? असत संग को विसर्जन करना है. भक्ति सदाचार यही 6 गुण. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर भक्ति सदाचार, लाइक वी हैव फॉर पीडीसी जो ज्वाइन करते हैं ना, उनके लिए भक्ति सदाचार कोर्स होता है. मतलब व्हाट इट इज फॉर, इफ एनीवन वांट्स टू डेवलप, what is a sadachar, what is a achar, sada achar, what is a positive achar, good practices for bhakti. So these are like bhakti sadachar, ye 6 guna. These 6 are the qualities for increasing your bhakti. Nahile amara natha. And somehow because of my lack, I am not able to have that with me. Kemane bhaji va tomara charana chhadiya mayara satha. Nicely, the translation is very nice here. So he is saying here, I have never had these 6 qualities. O Lord, how shall I serve your feet and give up connection with Maya? मतलब बोला मेरा इतना खराब परिस्थिति है, मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ. जो गलत 6 चीजें हैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं. हमेशा मैंने क्या है, इसको पकड़ के रखा है. That's why इतना अच्छा वर्ड से देखो यहाँ पे. केमा ने भजीबा, कैसे मैं आपका भजन करूँ? ये मेरे पास है ही नहीं सही चीजें. I don't have these 6 things, and that's why I'm not able to do your bhajana. Only my hope is what? Tomara charana, your lotus feet, my dear Lord. And then chhadiya mayara satha. So it's the third words now. I have remained immersed in condemnable behavior and never associate with the sadhus. Still I wear the dress of a sadhu and instruct others. This is a great trick of Maya. Bhaktivinoda Thakur लिख रहे. कितना अच्छा देखो ये. अर्हित आचार, अर्हित. ठीक है, आपने सुना होगा एक शब्द गर्हित कर्म. गर्हित कर्म मतलब क्या? Abominable activities. और अर्हित like similar. So I am so much engaged with abominable activities. अर्हित आचार है. मेरा सारा आचरण में क्या आ रहा है? Bad activities है मेरा सारा activities. रहीलाम माझी न करीनो साधु संग. I never did साधु संग. मैंने किसी वैष्णव का, साधु डजंट मीन ओनली सैफरन ड्रेस. साधु मीन्स एनीवन हैविंग साधु वृत्ति. जो छठवा है इसमें से वो क्या है? सतो वृत्ति. सतो वृत्ति मतलब क्या? साधु वृत्ति. इन शॉर्ट, जो व्यक्ति हु एग्जिबिट साधु वृत्ति है ना. लय साधु वेश. मैंने तो साधु का वेश पहन के जाते कमाए. धूर चालू बेटा. ठीक है. लय साधु वेश आने उपदेशी ये बड़ा मायर रंग. मैंने इतने अच्छे से साधु का कपड़ा पहना है. साधु कपड़ा मतलब क्या है? सैफरन. आई वेयर साधु रेशमी था. एटलीस्ट मैंने कम से कम साधुत्व का जो प्रतीक है धोती कुर्ता उसको पहना है. मैंने कंठी माला पहना है, मैंने तिलक लगाया है ना. और मैंने साधु का वेश परिधान कर लिया है. माई ड्रेस इज लाइक अ साधु. आने उपदेश, और मैं उपदेश भी कर रहा लोगों को. और कितने बड़ा माया का रंग है, कितना बड़ा माया का लीला है कि मैं इंटरनली आई एम नॉट फॉलोइंग इट, बट एक्सटर्नली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. तो माया रंग, दिस इज माया रंग. Here he is saying, in this condition I will receive your mercy, your unconditional mercy. O Hari, when will I, under the shelter of Shri Guru, humbly call out to you? ये है ना दास्य अहेतु की कृपा.
तोमार पाइबे हरि, श्री गुरु आश्रय, दाकीबा तुमा, दाकीबा मतलब कॉल आउट, उनको बुला नहीं रहे, बुला रहे हैं, बुलाना, मुझे बुलाना है। कबे व मिनती करी, मिनती मीन्स रिक्वेस्ट, मिनती का मतलब है एक्चुअली देखेंगे ना बंगाली में मैनी वर्ड्स आर क्वाइट सिमिलर विथ मराठी, तो काफ़ी चीज़ आप कनेक्ट कर पाओगे उसमें। तो वी कैन सी लाइक मेनी टाइम्स वी मे हैव अ साधु वेश, वी मे डू सो मच ऑफ उपदेश एट टाइम्स, वी मे एग्जिबिट externally so much of behavior, but unless and until we internalize that behavior, the six things specifically, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागा सतोवृत्ति, ये छह चीज अगर हमने अंदर नहीं ली, इंटरनलाइज नहीं किया उसको, तो बाह्य रूप से हम बहुत बार कर लेंगे चीजों को, बट दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस। सो आई वाज थिंकिंग दैट एक्चुअली दिस श्री गुरु आश्रय, इन दिस कंडीशन आई विल रिसीव, मतलब ये मेरा इतना बदतर अवस्था है भगवान, इतना खराब अवस्था है मेरा, मैंने पहले जो श्लोक में बोला, तो इसमें मुझे आपका अनकंडीशनल मरनी कृपा मिलेगा, मैं मिलने का मेरा मेरा ऐसा अपेक्षा है। ओ हरि, व्हेन विल आई अंडर द शेल्टर ऑफ श्री गुरु हमली कॉल आउट योर टू यू, मैं कब आपको पुकारूंगा है भगवान, ऐसा बोल रहे हो। तो मैं जो सोच रहा था कि कैसे लाइक कुछ ही लास्ट वीक में प्रभु जो गोपाल कृष्ण महाराज ने अपना गोलोक प्रवेश किया, उन्होंने फिजिकल रूप में हमारे सामने अभी नहीं है, बट वी कैन सी लाइक महाराज के जीवन में ना ये सारी चीज़ कितने एग्जाम्पलरी दिखते हैं हमको। उत्साह, मैं काफ़ी बार गेस्ट में साथ में रहता तो सब चीज़ें देखने मिलती थी, तो जब भी महाराज आते थे मंदिर में तो प्रणाम करने के लिए उनको एक तैयार होता, मतलब खुद को रेडी करना पड़ता था, खुद को रेडी करके पूरा वो एक पैर नीचे रखेंगे, फिर दूसरा पैर नीचे रखेंगे, और फिर पूरा हाथ को नीचे रखेंगे, और फिर पूरा फोर्स से बाहर नीचे जाएंगे, फोर्स से जाते थे नीचे। उससे उत्साह चाहिए मतलब व्यक्ति को, प्रणाम वो ऐसे भी कर सकते थे ना, ठीक है प्रणाम कर ले प्रणाम कर ले प्रणाम कर ले। कभी हमको थोड़ा पैर दुखने लगता था, हम ऐसे ही प्रणाम करते, देखा होगा आपने, समटाइम व्हेन लेग पेन समथिंग हियर एंड देयर लिटिल बिट हैपेंस एंड वी ट्राई टू मिनिमाइज आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटी as much as possible. But here is my example of Maharaj where he is maximizing his activity in whatever condition he is. रात को 1 बजेगा 2 बजेगा डिसाइपल को मिलते मिलते, यार हम डिसाइपल अपने सारा यूजलेस चीज़ें शेयर करेंगे, ये हुआ हमारा, ये हुआ उधर, ऐसा हो रहा है उधर वो हो रहा है, सबको सुनना, सबको सांत्वना करना, सबको इनकरेज करना, सबको भक्ति में उनका उत्साह बढ़ाना। एक्चुअली हम लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे ऐसे एक व्यक्ति के पास जब सब लोग इतना डंप करते हैं ना, तो क्या हालत होता है। हमारे पास जैसे मेरे केस में या फिर कौस्तुभ केस में, हमारे छोटे लेवल पे हमको थोड़ा सा कुछ होता है तो हमको इतना ऐसा लगता है बाप रे इतना सारा लोग शेयर कर रहे हैं, तो उनके लेवल पे तो कितना दुनिया भर से लोग शेयर करते हैं, तो कितना उनको उसके साथ वो उत्साह बनाए रखना कि मुझे सुबह मंगल आरती जाना है। मैं उनका ऑनलाइन ऑफरिंग सुन रहा था, तो महाराष्ट्र जो ड्राइवर थे दिल्ली के, वो बोल रहे थे कभी कभी महाराष्ट्र जब ट्रैवल करते थे ना, सुबह सुबह जब पहुँचना है मंदिर मंगल आरती के लिए, कहीं बाहर से जब आ रहे तब एयरपोर्ट से कुछ आ रहे, तो कभी कभी 160 पे चलाते थे, 160 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड पे चलता था गाड़ी। तो महाराज बोलते अरे क्या तुम कितना धीरे चला रहे हो गाड़ी, तुमको गाड़ी चलाने नहीं आता है। तो महाराज उसको ऐसे बोल बोल के वो बहुत फास्ट चलाता था, फिर समाव पहुंच जाते थे। जब 4:25 को पहुंच जाते थे महाराज बोलता यस यस वी रीच नाउ, यू आर नाइस, यू आर अ गुड ड्राइवर। मतलब महाराज का अपना मंगल आरती मिस नहीं करना है, कोई भी हालत में कुछ भी हो जाए मंगल आरती मिस नहीं करना है। तो क्या उत्साह चाहिए बाबा ये एज में 80 में, सी वो ही कैन चूज टू लाइक जस्ट लाई डाउन, अपने रूम में बैठ के अपना डीटी का सेवा कर लो, थोड़ा सा जप कर लो, जो भी कर लो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आ जाओ, कौन पूछने वाला है, कोई बोलने वाला है, कोई पीछे है उनके नहीं। पर उत्साह कितना स्ट्रांग है कि भाई मुझे करना ही है। इसलिए आपने वीडियो देखा होगा ना, वाला महाराज नींद में भी डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कैसे दिन में कोई कर सकता है। हम जगते हुए हमको करते नहीं आता है, व्यक्ति नींद में कर सकता है, उसका कितना वो गया होगा अंदर, क्या इंप्रेशन गया होगा, कितना उत्साह चाहिए व्यक्ति को करने के लिए। जब महाराज एडमिट थे एक समय, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग महाराज सुबह कुछ तो ऐसे करते थे, डॉक्टर को समझ में नहीं आता था, बाहर के डॉक्टर थे ना, अभी नहीं पहले के बाद, तो सुबह से कुछ तो ऐसे करते थे, डॉक्टर को लगता क्या हो गया इनको, कुछ तो हो गया क्या, मतलब कुछ बॉडी में कुछ तो ऐसा कंपन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ अटैक तो नहीं आया ऐसा लगता था। पर जब डीओटी ने देखा उनको पता लगा कि हाँ ये तो महाराज का एक हैबिट है आरती करने का रोज सुबह। इसलिए उत्साह चाहिए, उत्साह होगा तो भी कोई कर पाएंगे, हम तो नहीं हो पाएगा। तो जो देखो कितना अमेजिंग चीज़ है, जो चीज़ हम जागरूक अवस्था में नहीं कर पाते वो महाराज उसको एकदम ऐसे जब रेस्ट ले रहे उसमें कर रहे हो, क्या उत्साह चाहिए उसके लिए। फिर क्या निश्चय डिटर्मिनेशन चाहिए ना सब करने के लिए। डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो बोलेगा ठीक है थोड़ा मैं सो लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। नहीं, महाराज का बाईपास हुआ था
98 96 का प्रभुपाद ये था ना 100 ईयर्स प्रभुपाद के जब थे 1996। तो 96 के इनिशियल में उनका महाराज का बाईपास हुआ था। महाराज कुछ ही दिन में वापस आ गए, गुरु पूजा गा रहे, सब कुछ कर रहे, डांस कर रहे, मंगल आरती कर रहे, सब कुछ कर रहे। लोग को एटलीस्ट 6 महीने लगता है नॉर्मल होने के लिए बाईपास के बाद। तो कितना उसका कितना वो निश्चय चाहिए, उतना पेशेंस चाहिए। महाराज कुरुक्षेत्र का जब जगह था, जब उनका ये चल रहा था, लैंड का सब काम चल रहा था, तो वो समय महाराज ने क्या किया था तब? महाराज बोले जब तक ये लैंड मिलता नहीं इसको उनको मैं कुछ प्रसाद नहीं लूंगा। और सुबह से लेकर शाम तक चला सारा प्रोसेस उसका। जब फाइनली वो इस्कॉन के नाम पे जब हुआ, साइन हुआ, तब महाराज ने फिर प्रसाद लिया पहली बार। उसका चाहिए पेशेंस चाहिए उतना। भाई कोई व्यक्ति बोले यार ठीक है मुझे अभी मेरे को मेरा प्रसाद चाहिए, सब बाकी बाकी होते रहेगा, कोई कर लेगा दूसरा, मैं डिसाइपल को भेज दूंगा। नहीं, मेरे को मेरे सामने होना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात् देखेंगे ना कि हर एक एक्टिविटी जो महाराज करते, देखो महाराज का वीडियो एक अ डे इन वृंदावन, आप लोगों ने देखा होगा शायद। महाराज वृंदावन में सुबह से लेकर रात तक का एक दिन का क्या क्या एक्टिविटीज़ की उसमें दिखाया। वहाँ पर मंगल आरती किया, फिर बाद में दर्शन आरती को गए, फिर बीच में वॉक को जाके आए, किसी घर पे मिलने गए, फिर ब्रेकफास्ट लिया, मतलब इतना बैक टू बैक। फिर गुरुकुल गए, किसी को वापस किसी को मिलने गए, वापस मंदिर में आके आरती किया, संध्या आरती किया। बोला यार कितना खुद को एंगेज कर तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ऐसे एक्टिविटीज़ विच आर फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियस, वो खुद को एंगेज किए। संग त्यागात, और कुछ हमारे केस में संग त्यागात से ज़्यादा बोल सकते हैं कि हमारे अपना संग दिया लोगों को। इतने सारे पॉलिटिशियंस को हमारे ने कल्टीवेट किया, कनेक्ट किया। मोदी से लेके कितने 5-6 राज्य के सीएम का मैसेज है, सोचो ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। अलग अलग राज्य के सीएम का मैसेज आ रहा है, पीएम का जा रहा है, राष्ट्रपति का आ रहा है, अलग अलग में इंस्टीट्यूशंस का आ रहा है मैसेज महाराज के लिए। तो उतना उन्होंने सबको अपना संग दिया, और संग देने से उनका उनका भक्ति में वर्धन किया, उनको भक्ति अनुकूल कर्म उनको प्रदान किए। सतो वृत्ति, उसके बारे से साधु वृत्ति। मुझे याद है एक बार महाराज ना कुछ कारण उनका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब था, तो मंगल आरती आ नहीं पाए। पूना पूना का ही बात है। तब एक माता जी आई, महाराज कुछ समय बाद बाहर आए थे, तो वो बात डायरेक्ट बोली महाराज को, महाराज अब मंगल आरती नहीं आए आज। तो मतलब सोचो जीबीसी है, गुरु है और उनके डिसाइपल है वो, और वो बोल रही महाराज को बोल रही है। तो महाराज उसको बोलते सॉरी माता जी आई कुड नॉट कम। तो क्या जरूरत है महाराज को सॉरी वॉरी बोलने का, ये सब करने का? मतलब मैं बोलने का प्रयास करो कैसे उनका साधु का उनका वृत्ति है, साधु का उनका टेंडेंसी है। साधु मतलब क्या, ठीक है ये बोल रहा, लेकिन उसको वहाँ पर भी सॉरी बोल रहे। मुझे याद है जब अपना राधा दामोदर मंदिर का इनाग्रेशन हुआ था, इंस्टॉलेशन हुआ था डीटीज का, तो महाराज ने पहला आरती किया था डीटीज का। वो होने के बाद महाराज बाहर आए, तो मैं वहीं पे खड़ा था। तो महाराज यहाँ पे बोले कैन आई गेट सम महाप्रसाद। तो मैं तब सोच रहा था, एक मोमेंट के लिए मैं सोचा कि महाराज ये सारे मंदिरों के मतलब एक तरह से ना वो ही इज लाइक अ मास्टर। तो बोल सकते हैं ना ठीक है 2-4 महाप्रसाद पैक करके दे दो मुझे, मैं लेके जाऊंगा साथ में। पर वहाँ पे रिक्वेस्ट करे महाराज, मतलब ये सब साधु का गुण है, महाराज अपने जीवन से दिखा रहे। तो ये सब ना दैट्स वाई, इसलिए यहाँ पे आखिरी जो लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे सब के लिए कि श्री गुरु आश्रय। जब हम हमारे श्री गुरु का आश्रय लेंगे तो उनकी कृपा से हम ये सब चीज़ कर पाएंगे। सी वी कांट डू दीज थिंग्स बेस्ड ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, बट वी नीड द मर्सी एंड वी नीड द कॉजलेस मर्सी एंड द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कमिंग फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंड इट्स ऑलवेज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। उसके लिए हमको कुछ फिजिकल या मटेरियल चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है, इट्स ऑलवेज अवेलेबल। बस हमको वो मर्सी के साथ कनेक्ट करना है खुद को। जब कनेक्ट करेंगे हम वो मर्सी के साथ, तब हम उसके साथ डील कर पाएंगे। हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम। ऑनलाइन कोई ड्यूटीज है क्या? तो शेयर करना पड़ेगा ना फिर उनको लिए। हो रहे? हम्म।
सो लेट्स कंटिन्यू तत्त कर्म प्रवर्तन। अब देखेंगे प्रभुपाद ने परपोर्ट्स में अपने बहुत इसको शॉर्ट में लिखा है, वेरी शॉर्ट ही हैज गिवन इन द बुक। प्रभुपाद ने बाकी काफ़ी चीज़ें एडिशनल भी लिखी है एंड में, कैसे भक्ति का, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ भक्ति, वो हम एंड में देखेंगे व्हाट बेनिफिट्स ऑफ भक्ति क्या है। ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट वन इज तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अच्छा, डू यू रिमेम्बर ये प्रभुपाद ने उत्साह का डेफिनेशन क्या दिया था? उत्साह का डेफिनेशन, सो एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज उत्साह। निश्चय, पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, कितना क्लास हो गया अपना? निश्चय, नहीं दिए क्या? क्या है फिर निश्चय? निश्चय मीन्स टू हैव फर्म फेथ एंड कॉन्फिडेंस। इतना पढ़ा ना हमने अभी, ये सब क्या कहा? निश्चय मतलब टू हैव फर्म फेथ एंड कॉन्फिडेंस किसमें? नंबर वन, इन द स्टेटमेंट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड द गुरु whose words are fully in line with scriptures, ये सबसे पहला। नंबर सेकेंड, that Bhagavad Bhakti alone is the ultimate objective of all living beings. And number three, that activities other than bhakti such as jnana, karma or yoga do not yield any enduring benefit but makes one restless. ये तीन चीज़ों में बेसिकली हमारा, that means that we have firm faith and confidence कि सबसे पहले क्या है, स्क्रिप्चर्स में है, गुरु में है, भगवत भक्ति दैट इज प्रोसेस में है, और चौथा जितने भी भक्ति छोड़ के जितने भी एक्टिविटीज है, ज्ञान कर्म, ये सब में हमको फेथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज निश्चय। ये समझ गया निश्चय का क्या था? ओके। तीसरा, धैर्य मतलब सिर्फ डिटर्मिनेशन। धैर्य मतलब डिटर्मिनेशन होता है, पेशेंस, पेशेंस और फॉर्टिट्यूड उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेशेंस मतलब क्या है? फॉर्टिट्यूड इन द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति इवन इन द मिड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मतलब मेरे जीवन में अलग अलग समस्या भी आएगी, फिर भी मैं मेरे भक्ति का प्रैक्टिस छोड़ूंगा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज पेशेंस। पेशेंस ऑल्सो मीन्स पेशेंस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस स्टेज ऑफ भक्ति इवन व्हेन देयर इज डिले इन अटेनिंग वंस डिजायर गोल। अपना हमको जो गोल है, रिजल्ट है, वो मिल नहीं रहा है अभी, हम लोग पेशेंट है कि ठीक है बाद में मिल जाएगा, लेट मी प्रैक्टिस पेशेंटली। पहला क्या था? व्हेन यू हैव डिफिकल्टीज इन लाइफ स्टिल वी प्रैक्टिस भक्ति, नंबर वन, दैट इज पेशेंस। नंबर टू, व्हाट इज पेशेंस? इवन इफ यू डोंट अचीव योर गोल स्टिल आई एम कंटिन्यू माई प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, दैट इज नंबर सेकेंड। ये क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? ठीक है। नंबर तीन, फर्म कन्विक्शन दैट द पाथ ऑफ भक्ति द सोल पाथ फॉर ऑल द जीवस। मतलब भक्ति ही ऐसा, जैसे हम इसलिए हम ज्ञान के ऊपर, कर्म के ऊपर या योग के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा किस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा है? भक्ति के ऊपर। काफ़ी सिमिलर है ये पॉइंट, पिछले पॉइंट से काफ़ी सिमिलर है, सेकंड में जो मैंने बोला उससे। नंबर फोर्थ, डिटर्मिनेशन टू रिमेन ऑन द पाथ ऑफ भक्ति विदाउट स्लैकनिंग वंस एग्जीक्यूशन। मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का उदाहरण दिया कि महाराज को कोई भी चीज़ों ने उनका डिटर्मिनेशन को हिलाया नहीं, है ना, वो कंटिन्यूस रहा, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। एंड पेशेंस फॉर मेंटेनिंग द डिटर्मिनेशन कि भाई मुझे कुछ भी हो, मुझे ये करना ही है, मुझे 16 माला करना ही है, फॉर एग्जाम्पल। तो उस चीज के लिए पेशेंस रखना। वो चौथा, तत्त कर्म प्रवर्तन, जो हम डिस्कस करेंगे आज, चौथा, पांचवा, छठवा, ये तीन चीजें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज तत्त कर्म प्रवर्तनास? मीन्स टू रिमेन, मीन्स टू एंथुसियास्टिकली, फेथफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स दैट नरिशेस आवर भक्ति। मतलब देख सकते हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तन जो स्टेप है, वो आने के लिए आपको पहले तीन चीज का होना बहुत जरूरी है।
उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए और धैर्य चाहिए। ये तीनों चीज क्या 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 करेंगे, आपको भक्ति के पाथ में स्थित रखेंगे। और ये स्थित रखने के बाद देन यू कैन एंगेज योर सेल्फ इन टू तत्त कर्म प्रवर्तनात्, engaging yourself in those activities which are favorable for our devotional service. Understanding what I am saying? Clear हो रहा है? और मेनली इधर क्या लिखा है, भक्ति पोषक कर्म, टू एंगेज इन दोज एक्टिविटी विच विल डू पोषण, नरिशमेंट ऑफ आवर भक्ति, भक्ति पोषक कर्म। And neglect or laxity in following them will check one's progress in bhakti. अगर ये चीज को हम निग्लेक्ट करेंगे, अरे यार ठीक है इसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको निग्लेक्ट करेंगे फॉलो करना, या फिर उसमें आप बहुत आलसी बनेंगे फॉलो करने में, then that will affect our direct भक्ति। तो इसलिए ये कैटेगरी में दो चीज आएंगे, हमको डिस्कशन में आगे भी आएगा। वन इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शंस एंड वन इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशंस। तो व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं यार तुम ये चीज करो, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। और ये चीज मत करो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशंस। किसी को अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर बोलेंगे आप ये टैबलेट खाओ, है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन। और डॉक्टर बोलेंगे आप है ना तला हुआ मत खाओ, स्वीट मत खाओ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन। वैसी तरह प्रिस्क्रिप्शन को हमारे मतलब भक्ति के लैंग्वेज में भी कॉल दैट एज विधि। विधि मतलब प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिसेस। एंड द प्रोहिबिशन इज कॉल्ड एज निषेध। लिखा जाए ना प्रवेश निषेध, एंट्री इज नॉट अलाउड। सिमिलरली these activities are not allowed to we should not do these activities, that is called nishedha, and vidhi means we should do these activities, है ना। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् इन शॉर्ट मतलब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन या फिर विधि को फॉलो करना और निषेध को नहीं करना, है ना। तो विधि में क्या क्या आता है, अभी थोड़ा बोलेंगे आप। श्रवणम कीर्तनम, अपना सारा मॉर्निंग प्रोग्राम, इट कम्स इनटू दैट। या फिर आपको याद होगा जब हमने कैंप लिया था 31 और 1 जनवरी वाला, उस समय कौस्तुभपुर हमने ट्राई किया था कुछ 20 प्रिंसिपल्स कवर करने का 64 प्रिंसिपल में से। और हम ये भी पॉइंट तब रेज हुआ था कि जब व्हेन वी कम टू मॉर्निंग प्रोग्राम, दैट टाइम हाउ मेनी प्रिंसिपल्स डू यू फॉलो आउट ऑफ 64? 50, अराउंड 50, है ना। 50 के आसपास हम फॉलो कर लेते उसमें। मतलब सोचो 64 प्रिंसिपल्स ये क्या है सारे, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो इन शॉर्ट तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब क्या है, ये सारे 64 प्रिंसिपल्स, 64 अंगज ऑफ भक्ति। व्हेन यू फॉलो देम सिंसियरली, इवन वन, ऐसा भी कहा गया, जैसे आपने देखा 64 में से 5 मेन है, 64 में 5 मेन है, और ऐसा कहा गया सीसी में कि 5 में से इवन एक भी व्यक्ति एक को भी अच्छे से फॉलो करता है, देन ही कैन अचीव द अल्टीमेट बेनिफिट, कृष्ण प्रेम उसको मिल जाएगा, है ना। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ समवन फॉलोज ऑल ऑफ देम, उसका क्या अवस्था होगा, मतलब सोच सकते हैं हम लोग। तो टू डू दिस विधि, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, और निषेध मतलब क्या, एक्चुअली प्रभुपाद ना विधि में बहुत प्रैक्टिकल जाते हैं। परपोर्ट में पढ़ोगे ना इसमें, प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड गेट अप एट 4 o'clock, ऐसा लिखा है प्रभुपाद में उसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ। निकालेंगे उसको, हाँ। डिवोशनल सर्विस पेज 34, आपको लगेगा तो मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ। पेज नंबर 34, जिसमें देखो या निशा सर्वभूता नाम से पहले, अगर किसको लोकेट नहीं हो रहा है तो उसके पहले के पेज पे तो सेकंड पैराग्राफ है। रूपा लिख रहा है, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ओपनिंग मेनी सेंटर्स जस्ट टू इनवाइट पीपल टू लिव इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज एंड प्रैक्टिस द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। डिवोशनल सर्विस मीन्स ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। बिला क्या, मैं उसी पे आना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपको रेडी कर रहा हूँ मैं 4 AM के लिए। On the transcendental platform, there is no contamination by the 3 modes of material nature. This is called a Vishuddha Sattva, the platform of pure goodness, or goodness free from contamination by the qualities of passion, ignorance. In this Krishna consciousness movement,
We require everyone to rise early in the morning by 4 a.m. and attend Mangal Aarti or morning worship, then read Shrimad Bhagavatam, perform Kirtan and so forth. Thus we hold continuous activities in devotional service 24 hours daily. This is called as Sato Vritti, following in the footsteps of the previous acharyas who expertly filled every moment of time with Krishna conscious activities. Someone asked Srila Prabhupada, that Prabhupada, where in which scripture it is said we should chant 16 rounds for 2 hours? Prabhupada said, actually Krishna says, Satatam Kirtayantu Mam. We are very merciful, we are telling just 2 hours, just 16 rounds. Krishna says 24 hours, but we are just saying 2 hours. So that's why we have to do those activities in bhakti which are, let's follow the norm after an hour. Okay, let's go fast. So if you see in the slide, actually in slide what I have done, I have taken from Prabhupada purport some parts, something from other places and put together. तो ऐसा मत समझो हम लोग बस रीडिंग कर रहे हैं. वी आर लाइक ट्राइंग टू सारा एक साथ जो आया है उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करें उसके साथ. ओके, नॉट रिमेन आइडल बट बी एंथुसियास्टिक अबाउट एग्जीक्यूटिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तत्त कर्म प्रवर्तनात्. निगलेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल विल डिस्ट्रॉय भक्ति. मैंने काफ़ी इसमें से बोल दिया, मैं बस आपको बस समराइज कर रहा हूँ. रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक भक्ति. मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे. आपने सुना भक्ति के टाइप सुने होंगे आपने, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, है ना. तो ये वैदिक भक्ति या रागानुगा भक्ति का कुछ मतलब यू फॉलो वैदिक भक्ति फॉर सम टाइम, देन यू स्टार्ट रागानुगा भक्ति उसके बाद में. अच्छा, आपको इसका मीनिंग पता है ना सबको, वैदिक भक्ति मतलब क्या, रागानुगा भक्ति मतलब क्या, रागात्मिका किसको बोलते हैं, रागात्मिका भक्त किसको बोलते हैं, है ना. तो ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ जैसे हमने 10th का एग्जाम दे दिया तो स्कूल से हमको लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है और फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं, तो वैसा कुछ होता है कि साधना भक्ति हमने चालू किया, फिर साधना भक्ति खत्म हो गया, फिर अभी हम रागानुगा भक्ति करेंगे. कैसे होता है मतलब वो सारा हैंड इन हैंड जाता है. ओके, वेरी गुड. तो किस पॉइंट पे रागानुगा भक्ति स्टार्ट होता है, मतलब कब बोल सकते हैं यार ठीक है अब मैं ना अभी मैं रागानुगा भक्ति करूँ. मतलब कौन, प्रेमानंद बाबा. गुड. तो इसलिए मैं चाहता हूँ ना स्पेसिफिक आंसर चाहता हूँ. प्रभुपाद हमारे लिए रागात्मिक भक्त हैं. हाँ, देखो वैदिक भक्ति मतलब का जहाँ पे बहुत विधि है, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वैदिक साधना भक्ति कहा जाता है उसको. मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस करना पड़ता है हमको सब चीजों को. राग अनुग मतलब आप रागात्मिका मतलब क्या, जो व्यक्ति का राग मतलब अटैचमेंट जिस व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण ही है, उसका आत्मा, वो जो व्यक्ति का आत्मा कृष्ण है, मतलब आत्मा कृष्ण मतलब मायावाद फिलोसफी नहीं है, बट वो कृष्ण से इतना आसक्त है कि कृष्ण छोड़ के उसके जीवन में कुछ है ही नहीं. उसका एग्जाम्पल है गोपीस, नंद बाबा, यशोदा, गोपा, ये सारे कौन है, सब रागात्मिका भक्त है. अब जो व्यक्ति रागात्मिका भक्तों को फॉलो करता है उसको कहा जाता है रागानुगा. जो कृष्ण का मतलब रागात्मिका का अनुगमन करते करते वो राग डेवलप करना चाहता है, अटैचमेंट डेवलप करना चाहता है कृष्ण के साथ, तो उसमें भी प्रकार होता है रागानुगा, साधना भक्ति, उसमें भी टाइप है वैसा वाला. वो सारा हम डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के. पर मैं जो क्वेश्चन पूछा था कि देखो ये शिला प्रभुपाद का बहुत बड़ा एक कॉजलेस मर्सी हम सबके ऊपर कि प्रभुपाद ने हमको रागानुगा भक्ति को भी फॉलो करने का मौका दिया है. कैसे, तुलसी आरती है, इस पर कितना हम डायरेक्ट यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो. सखी मतलब कौन है, रागात्मिका भक्त है. सखी का मतलब जो सखी जो है उनको मेरे को फॉलो करके करते करते भगवान के प्रति अनुराग डेवलप करना है, ऐसा हम डिजायर व्यक्त कर रहे हैं सुबह. मतलब हम कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको छोड़ के हम उसको व्यक्त तो कर रहे हैं. एटलीस्ट भगवान बोले यार कभी तो सीरियसली ले लेंगे यार, इतने सालों से व्यक्ति रोज रोज वही बोल रहा है, रोज वही बोल रहा है, कभी तो सीरियस ले लेंगे भगवान हमको उस चीज़ के लिए. तो वो दिया प्रभुपाद ने. आपसे डीटी वर्शिप देखेंगे आप, भगवान कृष्ण कौन खिला सकता है बोलो, एक्सेप्ट यशोदा माई.
पर भगवान कृष्ण यहाँ पे हमारा जो कुछ कुछ बनाते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं, उसको लेते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं ना, हम दिन में 6 बार एक्सेप्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण। दैट इज लाइक रागानुगा साधना भक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला था, पुजारी इज वेरी फॉर्चुनेट। पुजारी वेरी फॉर्चुनेट क्यों है? ही कैन ड्रेस कृष्णा, कैन फीड कृष्णा, कैन बेद कृष्णा। कौन करते हैं सब एक्टिविटीज? ये सारे गोलोक के भक्त करते हैं ना, वो करने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है हमको। इसलिए प्रभुपाद बोले थे कि दैट्स व्हाई पुजारी इज वेरी फॉर्चुनेट। रुको, उनको रुका मैंने, आपको भी रुका। मैं आऊँगा, थोड़ा आपको उत्साह रखो, आपका क्वेश्चन पूछने का उत्साह वैसे रखो, निश्चय रखो और पेशेंस भी रखो, और उसके बाद फिर तत्त कर्म प्रवर्तन होगा ही। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों, दे बोथ ऑफ देम दे गो हैंड इन हैंड। रागानुगा और वैधि भक्ति ये दोनों साथ साथ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारे गौड़ीय वैष्णव तत्व ज्ञान का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसीलिए वी नीड नॉट टू फाइंड एनीथिंग आउटसाइड। इसलिए कहा था वृंदावन इज लाइक 100% डिवोशन एंड 99% डेविएशन। 100% डिवोशन मिलेगा आपको, लेकिन यू विल फाइंड सो मच डेविएशन। इसलिए हमको वी नीड टू ऑलवेज फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। वी हैव टू फॉलो दैट। अगर नहीं करेंगे तो किस पॉइंट पे कब डेविएट हो जाएगा समझ में नहीं आएगा, कि सभी सेम दिखता है। हालांकि व्हेन यू स्टडी इवन एट टाइम्स इफ यू कम अक्रॉस सम टाइम मायावाद, जर्नी हो में अब देखेंगे एक जगह पे महाराज एक व्यक्ति से मिलते हैं और वो राम कथा बोल रहा है, राम को ग्लोरीफाई कर रहा है, नाम का नाम ले रहा है राम का, और बाद में महाराज सो व्हाट्स योर गोल? आई वांट टू बिकम राम। वो उसका गोल था राम नाम लेने का। मतलब पॉइंट इज दैट मायावाद और इसमें बहुत थिन लाइन है, समझ में नहीं आता काफी बार। दैट्स व्हाई वी नीड टू रियली स्टिक विद आवर श्रील प्रभुपाद, खास करके फॉर अस। हमको प्रभुपाद के टीचिंग के साथ, वो टीचिंग को पकड़ के, इवन कभी कभी हो सकता है कि हम लोग, अगर हम प्रॉपरली गाइडेड नहीं है, इवन समटाइम आचार्यस का जो भी कंक्लूजन्स है, वी मे कंफ्यूज और वी मे कंक्लूड समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। मुझे नहीं देना था, बट एनीवेज एक मतलब इस्कॉन की हिस्ट्री का पार्ट है। एक डिवोटी है, इस्कॉन में शायद है नहीं, बट वो दिन में 8 घंटा भागवतम पढ़ते थे। 8 घंटा भागवतम पढ़ना जोक नहीं है। प्रभुपाद का भागवतम है, ऐसा बाहर का भागवत नहीं, प्रभुपाद का भागवतम पढ़ते थे। मतलब इतना पढ़ के इतना पढ़ा। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला पता है? उनका कंक्लूजन क्या निकला फाइनली? उनका कंक्लूजन ऐसा नहीं कि भाई कल परसों के डिवोटी थे, सेकंड इनिशिएट डिवोटी थे, तो सने से नहीं। तो उनका कंक्लूजन क्या निकला कि एक्चुअली जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है ना, उसी को ब्राह्मण इनिशिएशन मिलना चाहिए। ये कहाँ प्रभुपाद ने लिखा है मुझे बोलो? कोई भी गौड़ी आचार्य ने ऐसा कभी भी लिखा नहीं है, बट ही केम टू दैट कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग भागवतम। मेरे बोलने का क्या प्रयास कर रहा हो कि हमको देखो, ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा अगर हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, दैट मीन्स हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल। वही कभी कभी हो सकता है कि आचार्य के हम कमेंट्री बहुत सारे पढ़ सकते हैं, इट्स गुड, जिसका वो कैपेसिटी उसको करना चाहिए वो चीज़। पर उसी के साथ आप देखेंगे कि अगर हम केयरफुल नहीं है ना, तो वी कैन गेट डाइवर्टेड। इसलिए प्रभुपाद ने काफ़ी बार देखेंगे आप, जैसे हमारे वंशीवर्धन प्रभु है, वो एक शब्द इधर का उधर नहीं बोलते। प्रभुपाद ने जो जैसा लिखा है पुस्तक में वैसे बोलते। तो टू सम डिग्री इज वेरी सेफ। सेफ क्यों है? कि देन देयर इज नो चांस ऑफ डेविएशन, यू आर ऑलवेज फोकस्ड। खास करके प्रभुपाद ने हमको जो विशेष करके इतना सारा, देखो प्रभुपाद ने अपने ही काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इज नाइट स्लीप फॉर अस टू गेट दिस परपोर्ट्स। हमको परपोर्ट्स मिल रहा है प्रभुपाद का, इसलिए प्रभुपाद ने सब कुछ दिया लिटरली। किसी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। आप काफ़ी बार देखेंगे ना, आपको लगेगा प्रभुपाद तो, आप देखेंगे आचार्य के कमेंट्री देखेंगे, उसमें देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो श्लोका लिखा है। प्रभुपाद ने श्लोका नहीं लिखा अपने कमेंट्री में, प्रभुपाद ने उसका मीनिंग लिखा है वहाँ पे, उसका ट्रांसलेशन लिखा है। एक डिवोटी बोल रहे थे कि व्हेन यू स्टडी प्रभुपाद बुक्स, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, एंड देन यू गो टू आचार्य आफ्टर दैट। काफ़ी बार क्या होता है, लोग जंप करना चाहते हैं। प्रभुपाद को बेसिक लिखा है, बॉडी सोल के साथ खेलते रहते प्रभुपाद, लेट अस रीड समथिंग हायर। बट अनलेस एंड वी अंडरस्टैंड प्रभुपाद का क्या मूड है, प्रभुपाद का क्या फोकस है, उनका एम्फोसिस क्या है, उनका मूड एंड मिशन क्या है हमारे सबके लिए, देन एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड आचार्य इन अ प्रॉपर लाइट ऑफ प्रभुपाद।
So we need to understand Acharyas the way Prabhupada want us, that the way we should understand them, based on Prabhupada's teachings. तो एक डिवोटी बोल रहे थे, मैं बोल रहा था ऐसे कि when he saw Prabhupada books, he said ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा प्रभुपाद के बुक्स में कि काफ़ी जगह प्रभुपाद रेफरेंस देते हैं, काफ़ी जगह नहीं देते रेफरेंस, पर मैक्सिमम टाइम्स इट इज जस्ट कमेंट्रीज ऑफ प्रीवियस आचार्यज ओनली, जो प्रभुपाद ने हमारे लिए हमारे लैंग्वेज में. अभी देखो कहाँ किसने लिखा है 4 बजे सुबह उठने का, कोई आचार्य लिखा नहीं है पास्ट में कि वन शुड राइज अर्ली इन 4 o'clock, अटेंड मंगल आरती. तो प्रभुपाद उसको हमारे लेवल पे आके हमारे लिए क्या करना है हमको वो उस लैंग्वेज में लिख रहे हैं. अच्छा, वी नीड टू रियली स्टिक टू द प्रभुपाद परपोर्ट्स. वेलकम. सो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक भक्ति, उसमें क्या आते हैं? 4 यम आते हैं. यम मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. हाँ, पॉजिटिव प्रिंसिपल नियम, चैंटिंग 16 राउंड एक्सेट्रा. So what is the conclusion? Practice regulatory principles laid down by acharyas like 6 Goswamis. If one is slack in following spiritual progress, in following, then spiritual progress is checked. मतलब व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति होगा नहीं. If he is lax, मतलब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, ठीक है यार मैं आज 4 की जगह पे 3 ही रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, ऐसा बोलने वाला कोई होगा, then he can't progress ahead. They must be faithfully performed with enthusiasm. ये अच्छा कन्वर्सेशन है प्रभुपाद के बीच में और एक बॉब कोहेन ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स में थे. एक बुक भी है एक्चुअली इनका, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, ये उसमें से. तो वहां पे ना बॉब कोहेन आगे चल के ब्रह्म तीर्थ प्रभु करके उनका इनिशिएशन होता है. तो ये पहले भक्ति में आने से पहले के उनके प्रभुपाद को मिले थे, तब का उनका कन्वर्सेशन है. प्रभुपाद बोलते हैं सिमिलरली इफ यू ऑलवेज कीप योरसेल्फ स्पिरिचुअली एंगेज्ड, योर बॉडी विल एक्ट स्पिरिचुअली ऑल्दो इट इज मटेरियल. जैसे जो मैं बोला था कि महाराज का एग्जाम्पल बहुत फिट हो रहा है यहाँ पे. हालांकि उनका भौतिक सारा, महाराज मीटिंग करते सब कुछ करते थे, उनका सारा स्पिरिचुअलाइज हो चुका था एक्टिविटीज. द सेम एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन रॉड इज रेड हॉट, टच इट एनीवेयर एंड इट विल बर्न. इट मेक्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फायर. आयरन रॉड था, फायर के कॉन्टेक्ट में आया तो पूरा फायर ही बन गया. अभी वैसे जो भक्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के टच में आता है, ही ऑल्सो बिकम कृष्णाइज्ड. वो सारा उसमें, बिकॉज कृष्ण विशुद्ध सत्व है, वो व्यक्ति विशुद्ध सत्व में चला जाता है. सिमिलरली इफ यू ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन यू विल बिकम स्पिरिचुअलाइज, यू विल एक्ट स्पिरिचुअली, नो मोर मटेरियल डिमांड्स. तो बाप को पूछता है हाउ डू आई डू दिस, ये कैसे मैं करूं? दिस प्रोसेस दे आर डूइंग इट. दे मतलब डिसाइपल्स को बोल रहे प्रभु, ये लोग कर रहे हैं. यू हैव सीन दिस बॉयज, आवर 6 boys who have been initiated today, initiation हुआ था उस दिन, उनके बारे में बोल रहे हैं. It is very simple. You have to follow the 4 restrictive regulations and chant these beats. Very easy. कुछ मुश्किल है क्या उसमें करना? तो और एक भक्त बोलते प्रभुपाद, because you are presenting this knowledge so purely, then it's possible for the common man to understand this knowledge without chanting and following the 4 regulatory principles. प्रभुपाद देखो क्या बोलते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. मतलब वो व्यक्ति ने क्या बोला प्रभुपाद को, क्या बोला? अरे प्रभुपाद आप सारा प्योरली बोल रहे, इससे नॉर्मल व्यक्ति को समझ में आ रहा है, तो उस व्यक्ति को ना चैंटिंग या 16 माला और 4 नियम के फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है. वो बोले नहीं, वो सही नहीं है. प्रभुपाद बोल रहे दैट इज नॉट पॉसिबल. चेतो दर्पण मार्जनम, यू हैव टू क्लींस द मिरर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, देन द रिफ्लेक्शन विल बी प्रॉपरली व्यूड. इफ यू कीप इट डर्टी, then it is not possible. Therefore, we require first class men to understand this philosophy, not the 4th class men. If you keep him 4th class man, it is not possible. मतलब क्या, वो व्यक्ति 4th class कब रहेगा? जब वो 4 नियम फॉलो नहीं करेगा, जब वो माला नहीं करेगा, that time he will remain 4th class. In short, ना फॉलो करने से बेसिकली प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, when you follow these things, then you can become first class. And when you become first class, you can understand the knowledge properly. Then you can understand कृष्ण तत्व प्रॉपरली. प्रभुपाद ऐसा बोल रहे मधले वाले, ये डॉट वाले. हाँ नाही हे का, हे वाटतं पुष्ट कृष्ण स्वामी, मोस्टली पुष्ट कृष्ण स्वामी त्यांचं नाव, असं मी शुअर नाही, बट आय थिंक सो. ते प्रभुपाद सोबत होते.
ओके, आपण हा तो टॉपिक कंप्लीट करूया दत्तत कर्म पर्व, देन यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स व्हॉट एव्हर यू हॅव. So basically the same thing. Srila Rupa Goswami has enjoined the system of Tat Tat Karma Pravartanat, acting according to the regulatory principles for those aspiring to perform devotional service. In the Upadeshamrut, activities by which devotional service is cultivated are called as Tat Tat Karma Pravartanat, prescribed duties. Now same thing Sri Krishna tells to Uddhava in Uddhav Gita in 11th canto. इस श्लोक नहीं देखेंगे, विल गो टू ट्रांसलेशन. फर्म देखो ये सारे लिस्ट है जो भगवान दे रहे हैं, ये जो श्लोक है ना मैं दिखाया अभी, ये श्लोक का जो लिस्ट है, व्हाट कृष्णा इज सेइंग, कृष्ण के हिसाब से क्या फेवरेबल एक्टिविटीज है, व्हाट इज तत्त कर्म प्रवर्तनात् अकॉर्डिंग टू कृष्णा. आपको चाहिए तो श्लोक का नंबर नोट कर लो, बाद में आप उसको देख सकते हैं वेदावेश में वगैरह. 11.19.20 to 24. तो पहला क्या है, फर्म फेथ इन द ब्लिसफुल नरेशन ऑफ माई पास्ट टाइम्स. भगवान बोल रहे ये चीज है ना. कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ माई ग्लोरीज, भगवान के बारे में बार बार जप करना. अनवेवरिंग अटैचमेंट टू सेरेमोनियल वर्शिप ऑफ मी, भगवान का आरती जो होता है उसमें अटैचमेंट होना. प्रेजिंग मी थ्रू ब्यूटिफुल हिम्स, मतलब उत्तम श्लोक के साथ भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना. ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई डिवोशनल सर्विस, ऑफरिंग ओबेसेंसेस विद द एंटायर बॉडी. आज का भागवतम क्लास अगर आपने सुना होगा तो ओबेसेंसेस विद द एंटायर बॉडी, काफ़ी बार हम गलत, मैं फीडबैक नहीं लाया, काफ़ी बार हम गलत प्रकार से दंडवत करते हैं, है ना. हाथ बीडबैग के अंदर हाथ है उसके साथ ही दंडवत करते हैं, या फिर बीडबैग को ऐसा करके दंडवत करते हैं. देखा ना मैं पूरा, कोई लोग ऐसा करके दंडवत करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं. एक्चुअली कंप्लीट दंडवत मतलब क्या है, अब पूरा आपका हाथ आगे जाना चाहिए. ठीक है, बीडबैग है तो क्या करना चाहिए, हाथ में बीडबैग पकड़ के ऐसा दंडवत करो, प्रॉपर दंडवत होना चाहिए. और काफ़ी बार हम लोग है ना, अब मैं आपको पता है, वी हैव दिस वन डिवोटी कॉल्ड एज शंकरशन दास अधिकारी ब्रो. वो एक चीज़ बोलते हैं हमेशा जब आते, मुझे याद है, इसे समटाइम वी डू चीटिंग ओबेसेंसेस. चीटिंग ओबेसेंस मतलब क्या, भागवतम क्लास में बैठे हैं, मांडी मार के बैठे हैं, और ऐसा बीच में से सब ऐसा पूरा सर नीचे टेक दिया हमने. काफी का जब पेट होता है तो वो भी नहीं टेकता है. पर वो क्या बोलते हैं, दंडवत मतलब क्या है, एटलीस्ट पंचांग प्रणाम. जब आप पूरा मांडी मार के बैठे हैं ऐसे, और फिर उसमें आप ऐसा प्रणाम करते हैं, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ सर को लगा रहे हैं नीचे जमीन को. पंचांग में क्या होना चाहिए, 5 अंग तो लगनी चाहिए आपके, कम से कम सर लग रहा है, 2 हाथ लग रहे हैं, 2 पिए आपके घुटने लग रहे हैं. तो चीटिंग ओबेसेंस मतलब क्या होता है, बस मांडी मार के बैठो, उधर ही ऐसा झुको और उठो, दैट इज कॉल्ड चीटिंग ओबेसेंसेस. पर असली पंचांग मतलब क्या है, जैसे होता है ना, आप क्लास के समय जब वो जय राधा माधव हो गया, कोई डिवोटीज प्रेम ध्वनि गाते हैं, वो समय जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, नरसिंह आरती का तो ऐसे करते हैं, है ना. तो वैसा नहीं करना चाहिए. वो बोले थे कि प्रॉपरली यू शुड ऑफर पंचांग प्रणाम, उठ के थोड़ा सा हिलना होता नहीं काफी बार हमसे. तो इससे और एक हमारा सी वी हैव 3 ऑल्टर्स एनवीसीसी में. तो उसमें क्या होता है, काफी बार हम थोड़ा सा प्रभुपाद को कर लिए, फिर वैसे एक पूरा अबाउट टर्न लेके वहीं पे तीनों को कॉमन कर लिया. होता है ना ऐसा. नहीं, भाले तो एक ही ऑल्टर है तो स्टिल अंडरस्टूड, बट यहाँ पे 3 ऑल्टर है, हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं. ये पहले 10 सेकंड का ओबेसेंस गौरनीताय को, बीच के 10 सेकंड का इनको, और बचे हुए 10 सेकंड का इनको, तीनों को एक जगह पे हम कर लेते प्रणाम. तो वो गलत है वो चीज करना. चलो कल ऐसा भी हो गया ना, कल यहाँ के वृंदावन चंद्र को हटा के उधर कोई मसोब को भी रख दिया ना, हम ऐसे करेंगे, है ना. तो वैसे तो अवर प्रणाम शुड बी कॉन्शियस. आज के क्लास से वही चल रहा था. कॉन्शियस मतलब क्या, आप प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणति हम गाते हैं, कि वो दैट मेक्स अस कॉन्शियस अबाउट प्रभुपाद. व्हेन यू आर ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू गौरनीताय, you say like, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati, glorify them and then offer. Then you become conscious about them. When you offer obeisance to Radha Krishna, you become conscious about them. है ना. तो कॉन्शियसली जब एक्टिविटी कल से करके देखो, फिर अभी जाके करके देखो, जब जाओगे तो कॉन्शियसली ऑफर करो, यू विल फील कनेक्टेड विद देम. अरे ये तो टीटीज है यहाँ पे, आई एम ऑफरिंग टू देम. सो ऑफरिंग ओबेसेंस विद द एंटायर बॉडी, परफॉर्मिंग फर्स्ट क्लास वर्शिप ऑफ माई डिवोटीज, मद भक्ता पूजा लभिका. यहाँ पे एक श्लोक में ऐसा वर्ड्स आता है. कृष्णा सेज माय, एक्चुअली जो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, बट समवन इज अ डिवोटी ऑफ माय डिवोटी इज एक्चुअली माय डिवोटी, ऐसे कृष्णा बोलते हैं. ये कहाँ पे हुआ था,
विच पास्ट टाइम दिस हैपेंड इन भागवतम? यहाँ पे विष्णु बोले थे, अम्बरीश महाराज पास टाइम हुआ था, जब वो दुर्वासा मुनि को बोले थे यार तुम मेरे पास क्यों आए, उनके पास जाओ, मैं मेरे भक्तों का वर्शिप करता हूँ, वो मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Consciousness of me in all living entities, offering of ordinary bodily activities in my devotional service, offering words to describe my qualities, offering the mind to me. वो स्टोरी पता है आपको? एक जयपुर की एक रानी थी, सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट भेज रहे थे जगन्नाथ के लिए, अलग अलग गिफ्ट भेजे. बोले मैं क्या भेजूं जगन्नाथ के लिए अभी? तो बोली मैं मेरा मन भेजती हूँ. तो मन तो जनरली मन ऐसा चीज़ है जो अपना खुद का है एक तरह से. मन देना मतलब क्या? यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट द लॉर्ड, दैट्स व्हाट इज सेइंग. ऑफरिंग द माइंड टू मी, रिजेक्शन ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, गिविंग अप वेल्थ फॉर माय डिवोशनल सर्विस. रूप गोस्वामी ने एटलीस्ट हमको थोड़ा सा बचाया है. ये कृष्णा थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, बोलते पूरा दे दो बोलते. रूप गोस्वामी बोलते ठीक है आप 50% दे दो एटलीस्ट भगवान की सेवा के लिए, 50% आप खुद के लिए रखो. Renouncing material sense gratification, happiness, performing all desirable activities such as charity, sacrifice, chanting, vows, and austerities with the purpose of achieving me. These constitute actual religious principles by which those human beings who have actually surrendered themselves to me automatically develop love for me. What other purpose or goal would remain for my devotees? जब मेरे भक्त ये सब चीज़ करते हैं, that means that is what basically that is तत्त कर्म प्रवर्तनात्. Those activities are something which will please Krishna, and that will develop attachment towards Krishna. तो इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली विल थोड़ा इसको स्किप करेंगे, आगे जाएंगे. तो इट टॉक्स अबाउट हाउ रूप गोस्वामी इन भक्ति रसामृत सिंधु हैज गिवन 64 प्रिंसिपल्स, आउट ऑफ विच गुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवन, षड्धर्म शिक्षा, पृच्छा, साधु मार्गानुगमनम, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसमें कहा गया है. यस, क्वेश्चंस? आवाज करेगा माइक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभूजी, जे तुम्ही एक्झाम्पल दिलं ना की अबाउट द डिवोटी हु वॉज रीडिंग फॉर 8 hours भागवतम, तर प्रभूजी एट दैट टाइम इफ समवन इज रीडिंग फॉर 8 hours, he should means by default be under the guidance of some superior ना? नहीं, उसी के साथ क्या होता है ना, देयर आर मल्टीपल फैसेट्स टू इट. वन थिंग इज, कोई व्यक्ति का दिन भर साधना ही कर रहा है बट नो सेवा फॉर हिम, द साधना विल नॉट गेट डाइजेस्टेड. सुना है, उसको धारण करने के लिए शक्ति चाहिए ना, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि बस हम ले रहे, जस्ट इमेजिन करो हम खा रहे बट डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा अंदर कुछ. तो इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड इट लीड्स टू पाइल्स. इट्स अ डिसीज है ना आगे चल के. तो पॉइंट क्या है कि जब तक उसको हम डाइजेस्ट नहीं करते, डाइजेशन होता है सर्विस से. यू गेट रियलाइजेशन थ्रू सर्विस, यू मे नॉट गेट थ्रू. अब देखो, वी हैव स्टोरी ऑफ आवर साउथ इंडियन ब्राह्मणा, वो था ना श्रीरंगम में था, जब महाप्रभु गए थे, उल्टा गीता पढ़ रहा था. गीता ब्राह्मणा जो था, उसको तो पढ़ते भी नहीं आ रहा था अच्छे से, बस रो भी तो रहा था. तो महाप्रभु ने क्यों ऐसा बोला कि इसको समझाए गीता? ये सारे विद्वान जो पंडित उनको समझाई नहीं गीता, क्यों बोला ऐसा? तो ही कुड अंडरस्टैंड बिकॉज़ ही वाज अप्लाइंग, ही वाज डूइंग सर्विस टू द लॉर्ड. बाकी लोग बस बैठ के बस चर्चा कर रहे थे. तो पॉइंट क्या है? एक है कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए. अभी डिपेंड करता है, काफ़ी बार जब व्यक्तियों के पास बहुत नॉलेज आ जाता है तो उसका ही शुड ऑल्सो हैव ह्यूमिलिटी ऑफ अप्रोचिंग अदर्स. काफ़ी होता है एक्चुअली दिस हैपन्स. काफ़ी बार प्री मैच्योर जब हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्री वगैरह पढ़ लेते हैं ना, तो हमको लगता है कि प्रभुपाद तो बेसिक लिखे, प्रभुपाद ने तो क्या इतना बहुत सिंपल लिखा है. तो देखो, ऐसा अगर हो सकता है, 2-4 के कमेंट्री पढ़ लिया हमने, 2-4 का कुछ पढ़ लिया, हमको ऐसा लगने लगता है प्रभुपाद के लिए. फिर कभी कभी वो लगता है कि हमारे यहाँ टीचर्स के लग सकता है, अरे ये तो बेसिक ही बोल रहे प्रभु, कुछ इसमें तो शास्त्रिक लग ही नहीं रहा है ना. ये कब क्यों लग सकता है, क्यों लग रहा है? देखो, जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वो कुछ खुद के मन से बोल रहा है? तो सपोज अब मैं प्रयास कर प्रभुपाद से जो बोल रहे वो बोलने का प्रयास करा, तो वो भी लगना, वो फीलिंग हृदय में आना, मतलब क्या है? हमको लग रहा है कि भाई शायद से ये ही इज नॉट अ फिट टीचर फॉर मी.
ऐसा लग सकता है किसी को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो काफ़ी बार इसमें क्या होता है कि इतना पढ़ लिया, उसको गाइडेंस है नहीं है, पता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो जो पढ़ रहा है उसको व्हाट इज प्रोसेस, इसमें बोल रहा हूँ कि जब हम पढ़ते हैं हमको उसको वैलिडेट करना चाहिए, यार इज दिस राइट अंडरस्टैंडिंग आई एम सपोज टू गेट। उसको हमने वैलिडेट नहीं किया तो हम, जैसे आप मृदंग के, आप लोग इतना मृदंग में एक्सपर्ट है, सोचा आपने खुद ने कुछ, किसने आपको बीट सिखाया और आपने आपके हिसाब से उसको प्रैक्टिस किया, किसको उसको क्रॉस चेक नहीं कराया किसी टीचर को दिखा के, तो आप परफेक्ट बजा रहे हो उसको, आपको क्या लग रहा है यार तो परफेक्ट ही है, पर टीचर बोला ये तो सही नहीं है, तो कहीं ऑफ ही जा रहा है, ये बीच का एक पॉइंट है ना, कहीं और जा रहा है, और टीचर आपको करेक्ट कर पाएगा। इसलिए आजकल लोग जो ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं ना बहुत बार, उसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि वो व्यक्ति आके आपको करेक्ट नहीं करने वाला है, वो व्यक्ति आके आपके जीवन में कुछ आपको आपको आपने गलती करे तो उसमें सुधारने नहीं वाला है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा व्यक्ति रहेगा, ही इज नॉट ऑफरिंग यू करेक्शन। और उसमें मेनली आप देखेंगे ना, तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेवया, सेवया का प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो सेवा हो नहीं रहा है तो उपदेशंति ते ज्ञानम प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं। तो आपको उसका परपोर्ट मतलब उसका जो एक इसेंस है उसको कैसे समझेगा, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू when that परिप्रश्न everything happens, that सेवा happens for the teacher। तो इवन अगर कोई व्यक्ति ऐसा, मतलब हम लोग एक बार डिस्कशन कर रहे थे कि राधेश्याम एक बार हमको बोल रहे थे, कभी कभी हो सकता है बहुत जूनियर ड्यूटी भागवतम क्लास दे रहा है, जूनियर मतलब बहुत यंग, अभी जस्ट उसका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है और जस्ट उसने दिया है। काफ़ी बार होता है कि वो ऐसा नॉर्मल चीज़ें रिपीट करेगा, प्रभुपाद का एग्जाम्पल बोलेगा, सारा सब कुछ बोलेगा, रोज ही बोलते कि ऐसे नहीं, हमने सोचना चाहिए, करे हो तो कल परसों का व्यक्ति, इसको मैंने भक्ति मिलाया, यही क्लास दे रहा, मैं क्यों सुनूं उससे, नहीं। सो स्पिरिचुअल जो पोटेंसी या फिर शक्ति है वो किसी व्यक्ति के थ्रू आ सकता है हमारे जीवन में, नॉट नेसेसरी कि ही हैज़ टू बी पंडित और विद्वान और दैट। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, बहुत रिस्क कब हो जाता है, जब हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, वी नो टू मच। समटाइम इट इज़ गुड टू हैव लेस नॉलेज एंड रिमेन हम्बल देन टू हैव सो मच ऑफ नॉलेज एंड देन वी स्टार्ट, सबको हम जज करते हैं, सबको हम कंक्लूजन देना चालू कर देते हैं। नहीं, क्यों करना है ऐसा, कौन सा आचार्य ने ऐसा किया। आप देखो साउथ इंडिया में रामानुचार्य संप्रदाय में दाशरथी, आई थिंक सो इट वाज दाशरथी, दाशरथी वॉज वन ऑफ द टॉप क्लास स्कॉलर्स। और ये जब गए इनके पास, रामाचार्य के पास, वो बोले कि जाओ थोड़ा, वो गांव में ना एक फैमिली है, उनके फैमिली के साथ कोई सर्वेंट नहीं है, जाके वापस सेवा करो। वो जाके अपना अपना चुपचाप से, कोई कोई कुछ नहीं, मुंह बंद रख के अपना अपना सेवा कर रहा है, बर्तन धो रहा है, पानी लेके आ रहा है, कुकिंग कर रहा है। और एक बार वो गांव में कोई तो व्यक्ति आता है, एक सो कॉल्ड स्कॉलर आता है एंड ही स्पीक्स ऑल नॉनसेंस, इससे रहा नहीं जाता है, फिर उसको डिफीट करता है। फिर लोगों को रियलाइज होता है ये कौन है, ये रामाचार्य को बोलता है वो आपका दाशरथी उधर है। एक्चुअली ही दाशरथी गोज टू हिम आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वधर्म परित्यज्य, इसका मीनिंग क्या है। तो सब मीनिंग बताने के लिए उनको रामानुचार्य क्या देते हैं, सी वो हाई क्लास स्कॉलर था, थे मतलब, तो वो बोल सकता था ना ये सब, ये मेरा थोड़ी सेवा है, बर्तन धोना, पानी वेल से पानी निकालना, कपड़े धोना, ये तो किसी और भी कोई भी कर लेगा ना, मैं क्यों करूँ। बट उनका क्या था, प्रणिपात था टुवर्ड्स गुरु, उसके कारण ही कुड अंडरस्टैंड। तो पॉइंट वही है हमको कि इट्स नॉट जस्ट बाय रीडिंग भागवतम वन कैन अचीव, दैट हैज टू डन अंडर गाइडेंस, देन यू वैलिडेट आवर अंडरस्टैंडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वी डू सम सेवा। अगर बस हमारा हेडवेट अगर बढ़ गया, जैसे आपने सुना है सेकंड कैंटो में एक डिस्कशन आता है कि व्यक्ति का काफ़ी बार ना क्राउन बन जाता है, क्राउन, वी गेट सो मेनी क्राउन्स, ये अचीवमेंट किया, ये किया, सब कुछ किया, तो समटाइम दैट क्राउन, आवर अचीवमेंट्स बिकम लाइक अ हैवी वेट ऑफ अपने सर पे बैठा, और वो हमको डुबा देता है नीचे। तो काफ़ी बार जो सो कॉल्ड अपेरेंट नॉलेज जो बोलते हैं हम लोग, हमने इतना सारा पढ़ा, ये किया, वो किया, तो दैट में एट टाइम्स रियली हमको बेसिक ये सब ह्यूमिनिटी हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसमें कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ गाइड, वी रिक्वायर अ टीचर, वी रिक्वायर अ मेंटर, काउंसलर। क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हम गाइड करेगा, वो देखेगा अरे ये थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, तो देन ही विल करेक्ट अस, ही विल हेल्प अस। क्योंकि हमको वी रियली डोंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन आवर लाइफ्स एट आवर पोजीशन। ओके, विल गो अहेड। ओमकार ब्रो, पण आता खूप वाचलं की वी शुड हॅव पेशन्स, वी शुड हॅव पेशन्स, नाही का, भक्ती टेक्स टाइम, स्पिरिच्युअल थिंग्स टेक टाइम, बट Prabhupada in many purports he writes that once even 1 second one can achieve bhakti. या खटवाग महाराज, वन हां. मुहूर्त, मग तेच ना, म्हणजे दोघं कसं बघायचं मग ते फक्त
जे आधी त्यांच्याकडे You see, it's very simple. Actually, when Prabhupada is saying, it just take one lifetime, this one life you can go back home, back to Godhead. Prabhupada बोलते काफी जगह पे ऐसे लेक्चर में सुना होगा आपने, है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद इज क्रिएटिंग एस्पिरेशन फॉर अस. अरे भाई तुम एक लाइफ में जा सकते हो, क्यों नहीं जा रहे हो तुम? उसका ईगरनेस प्रभुपाद क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, है ना? वो ईगरनेस क्रिएट करना जरूरी है ना. ईगरनेस है नहीं जाने का, तुम जाओगे कैसे वहां पे? तो दैट इज वन पार्ट टू क्रिएट ईगरनेस टू गो देयर. एंड नंबर से पेशेंस क्यों? क्योंकि अभी इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हमारे अंदर ही इतना सारा मैल जमा है. अगर आप बोलेंगे मुझे एक जन्म में जाना ही है, तो ऑफकोर्स उसके कारण अगर आपका ईगरनेस अच्छा होता है, देन योर प्रैक्टिस ऑल्सो बिकम इंटेंसिव, दैट्स गुड. पर अगर आप उसके कारण आप क्या करते हैं, ठीक है मतलब ईगरनेस तो आ रहा है, ईगरनेस आने का प्रयास कर रहे हैं आप, पर फिर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा उसमें? पेशेंस इस बात का कि मेरे हृदय का भी मैल क्लीन हुआ नहीं है. इट इज टेकिंग टाइम फॉर क्लीनिंग ऑफ द डर्ट इन माई हार्ट. माई अनर्थास आर नॉट गेटिंग क्लियर्ड ऑफ टिल. ठीक है यार, मैं अभी मतलब है ना, आई एम सो फॉलन, आई एम सो फॉलन, आई एम सो फॉलन दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कम फॉर मंगल आरती. ये इस तरह से हो जाता है काफी बार. मैं इतना पतित हूँ, मतलब पीपल एट टाइम्स गो इन टू दैट डिप्रेशन, क्या है मेरे से हो नहीं रहा है. एक बार राधा गोपीनाथ मुझसे किसने पूछा, अरे हम इतने सारे पास्ट टाइम पढ़ते हैं, आपने सुना ना काफी पास्ट टाइम के बाद आता है, अरे अगर आप इस तरह से ये पास्ट टाइम के बाद, तो एनीवन हु रीड्स दिस पास्ट टाइम विथ फेथ विल अचीव कृष्णा. तो हमने कितने सारे पढ़े होंगे ना आज तक. कृष्णा बुक में हर एक चैप्टर के बाद आता है, हर एक असुर को मारने के बाद कोई ना कोई आ ही जाता है ऐसा. तो राधा गोविंद ने बहुत अच्छा आंसर दिया उसको. व्हेन विल अचीव दैट, वो पूछे बोले थे, वो बोले सूनर देन वी डिजर्व एंड लेटर देन वी डिजायर. एक तो डिजर्व होता है, क्या हम डिजर्व करते हैं? तो डिजर्व जितना करते हैं ना आप, एक्चुअली आपके हिसाब, हमारे हिसाब से इट वुड हैव टेकन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम फॉर अस टू कम टू दिस पॉइंट व्हाट वी आर इन. बट बिकॉज ऑफ द कॉजेस मर्सी ऑफ आचार्यस, एटलीस्ट वी गॉट द डिजायर नाउ कि भाई मुझे उसको कुछ तो करना है, कुछ तो अचीव करना है मुझे अपने जीवन में. तो प्रभुपाद एक जगह पे ईगरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी जगह पे ये भी हमको बोल रहे हैं ठीक है ईगरनेस आप करो, और उसी के साथ जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके पाथ में आएंगे, हो सकता है पास्ट लाइफ का आपको जितना भी पूरा बैगेज है, किसी का ज़्यादा हो सकता है. तो अगर वो बैगेज को लेकर वो डिप्रेस्ड हो जाए कि अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वाई डू वी हैव सो मेनी पास्ट टाइम्स ऑफ अजामिल? क्या अजामिल का पास्ट टाइम क्या रेगुलर पास्ट टाइम है? इट्स अ वेरी यूनिक पास्ट टाइम इन अ वे कि भाई कोई व्यक्ति इतना करके भी उसका हो सकता है. मतलब यार मैं तो शायद, मैं अजामिल इतना, शायद मैं इतना पतित नहीं हूँ, पर कहीं तो बीच में हूँ मैं, तो लेट मी कंटिन्यू. तो उसको थोड़ा सा होप भी आ गया, उसको उत्साह भी आ गया. उसी का उसको पता है मेरे को थोड़ा समय लग सकता है. ठीक है, क्यों समय लग रहा है? मेरे खुद के कारण. बोट रोइंग का था ना एग्जाम्पल, लोग तो उत्साह से कर ही रहे थे पूरा रात भर, पर एंकर ही नहीं निकला था ना. अभी अपना एंकर नहीं निकला इसके सबका. जब हमारा एंकर निकलेगा उस दिन फिर बोट क्या भागेगा, देखो आगे. उसको एंकर निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तब तक हमको पेशेंस रखना है. तो पेशेंस किसके लिए रखना है? बेसिकली किस चीज को हमको, किस चीज से आपको हमको पेशेंस रखना है? आपना कर्म भुंजाय शमन, जो हमने पिछले हमने किया, इतना सारा बैगेज कैरी कर रहे हैं हम, उसी के साथ डील करने के लिए पेशेंस रखना है ना हमको. किसी और का हमको नहीं करना है, हमारे जो पास्ट में है उसी को हमको डील करते करते करना है. जी अभी आप बोलेंगे यार भगवान तो इतने पावरफुल है, भगवान का एक हरि नाम सफिशिएंट है. खटवांग, जैसे मैंने बोला खटवांग महाराज एक क्षण में चले गए, एक मुहूर्त में चले गए, तो क्या भगवान का होली में इतना पावरफुल नहीं है? हम लोग तो इतने दिन से, इतने सालों से करने का प्रयास ही कर ही रहे ना. पर क्या है, भगवान क्या ना हमको अच्छे से टेस्ट करना चाहते कि भैया वापस जब आएगा ना, ये वापस बोलेगा नहीं कि मुझे वापस जाना है उधर, मुझे अलग से रहना है. उसके देखो वन सेंस इफ यू सी, माया देवी इज नॉट अवर एनिमी. माया देवी क्या कर रही है? टेस्टिंग कर रही है. उसको इनसिंसियर और सिंसियर को अलग कर रही है एक दूसरे से. जो इनसिंसियर होते हैं वो फेल हो जाते हैं माया के टेस्ट में, जो सिंसियर है वो ये ना कहना प्रकार ने पूरी शक्ति ला के पास होने का प्रयास करते हैं. और उसमें क्या होता है, माया ये लेवल का टेस्ट होने के बाद यहाँ पे पास हो गए तो माया बोलते ठीक है, टेस्ट का लेवल बढ़ता है, फिर टेस्ट का लेवल बढ़ता है. अल्टीमेट जो अब देखिए शुद्ध भक्तों के जीवन में क्या क्या लेवल का टेस्ट आता है, उतना तो हमारे जीवन में नहीं आता है. क्या क्या लेवल पर उनको डील करना पड़ता है. तो प्रभुपाद हमको एक जगह पे उत्साह भी, हमको उत्साह बढ़ाना चाहते हैं गोलोक जाने का,
और उसी के साथ हमको बोलते हैं ठीक है थोड़ा पेशेंस भी रखो क्योंकि हमारा अभी प्रोसेस में है, वी स्टार्टेड टेकिंग बाथ, शायद थोड़ा सा भी क्लीन होना बचा है, पर जैसे तुम क्लीन हो जाओगे विल कम बैक टू मी। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो अहेड। संग त्यागात, गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटी। तो मैंने इसके बारे में पहले बोला था, तो संग त्यागात में क्या, ये क्यों नहीं जा रहा आगे? हाँ, to be successful in bhakti one has to give up the desirable, one has to give up undesirable people, that is called संग त्याग। ऐसे व्यक्ति जो हमारे भक्ति के लिए पूरक नहीं है, उसका छोटा सा एग्जांपल नीचे दिया है, उस तरह के लोग, they may not be very much helpful for us। categories of undesirable association, एक्चुअली मैं और एक पढ़ रहा था इस जगह पे, संग के दो प्रकार होते हैं, there are two types of संग ना, ये मैं कहीं पढ़ा था, मैं यहाँ पे नोट किया था मैंने इस पे। संग का एक मतलब क्या है? संसर्ग। संसर्ग मतलब क्या? एसोसिएशन। संग का एक मतलब क्या है? संसर्ग। उसका मीनिंग क्या है? संसर्ग का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? एसोसिएशन। दूसरा मीनिंग संग का क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट। सो वन इज एसोसिएशन एंड वन इज अटैचमेंट, दो चीजें। फिर जो एसोसिएशन है फर्स्ट कैटेगरी, उसके उसमें दो कैटेगरीज आते हैं। एक है एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज एंड एसोसिएशन ऑफ वुमन। एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज और एसोसिएशन ऑफ वुमन, ये जो श्लोक आएगा सीसी में, असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार, उसमें आगे सेकंड लाइन में इट कम लाइक एक जो स्त्री संगी एक होता है और कृष्ण अभक्त आर, उसमें श्लोक में आता है इस तरह से। टू टाइप ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक है नॉन डिवोटी का संग करना और दूसरा होता है वुमन, बेसिकली वुमनाइजर और वुमन, स्त्री संगी और स्त्री। स्त्री संगी का संग करना मतलब क्या है? दैट इज लाइक नॉन डिवोटीज और यू नो सम एडिक्टेड टू वुमन, वुमनली एसोसिएशन। एंड सेकेंड इज वुमन एसोसिएशन, मतलब क्या है वो? इट्स लाइक डायरेक्ट वुमन, तो बहुत क्लियर है। सो कैटेगरीज ऑफ, नहीं, so what is the categories of undesirable association? Karmis, Jnanis, Yogis and other non-devotees. Lord Chaitanya Mahaprabhu gives the behavior of a Vaishnava. One who gives up worldly association, asatsanga tyag, ye Vaishnava achar, the way I said. नरोत्तम दास ठाकुर से तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, ये कहाँ गाते हैं हम लोग, कौन से सॉन्ग में है? हरिहर ये नम कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, उसमें आता है तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। सो लिव इन द कंपनी ऑफ प्योर डिवोटीज एंड एग्जीक्यूट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये आता है आपका संग त्यागात में। तो लेट अस सी so what are the effects of bad association? हमको why one should give up bad association? So let's see what are the effects. So these are quotations from Srimad Bhagavatam, where it comes in 10th canto. A wise person should not enter an assembly if he knows the participants there are committing acts of impropriety, and if having entered such an assembly he fails to speak the truth, speaks falsely or pleads ignorance, he will certainly incur sin. मतलब ऐसे संघ में आप जा रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहां पे? जहाँ पे गलत चीजें हो रही है, और ऐसे गलत जगह पे जाके अगर आप सही चीज नहीं बोलते हैं, है ना, तो इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक यू आर कमिटिंग अ सिन। अब उनको यू आर पार्टिंग टू द पीपल हु आर डूइंग देयर। इसका मतलब क्या है? हमको ऐसे जगह पे जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए एक तरह से। जब कहा गया एनीवन हु फेल्स टू immediately leave the place where he hears criticism of the Supreme Lord or his faithful devotee will certainly fall down, bereft of his pious credit.
ये पास में पता है हमको, ये फोटो दिख रहा है नीचे, क्या है? दक्षा, दक्षा और शिव जी का, है ना, वहां पे काफी अपराध हुए थे, इसलिए फिर बाद में दक्षा को क्या हुआ, अपराध के कारण ही गॉट अ गोट हेड. Now let's have this conversation, ये प्रोपात का conversation है about association. Implicated in sinful activity by association. प्रोपात बोल रहे हैं that child, so that separation, crows will not like to live with the ducks and white swan. जो कौवे लोग होते हैं ना, कौवे के जैसे जो लोग होते हैं, उनको क्या अच्छा नहीं लगेगा? तद्वाग विसर्गो जनता का विप्लव, श्लोक आता है सेकंड कैंटो, फर्स्ट कैंटो में. ये कैसे है? द पीपल हु आर स्वैन लाइक पीपल विल नॉट लाइक टू एसोसिएट विथ क्रो लाइक पीपल, एंड क्रो लाइक मेंटेलिटी लाइक पीपल दे विल नॉट लाइक टू बी विथ स्वैन लाइक पीपल, इन शॉर्ट. And white swans will not like to live with crows. That is natural division. Birds of the same feather flock together. है ना? तो जगदीश वो जो उनके डिसेबल बोलते हैं, an honest man don't like to associate with thieves and criminals. वो बोले yes, it's natural. We are not interested even with this daily newspapers. We are interested in Bhagavad Gita. We don't keep any news. ये सही है क्या? हम लोग न्यूज़ नहीं देखते, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे. हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते. सही है ना? मतलब सही है, मतलब ये मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग क्या ये चीज़ करते हैं? मतलब हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे. वी नो द डॉग्स आर बार्किंग, दैट्स ऑल. But that does not mean we have to mix with the dogs. Jagdish Bora, if you know that someone is committing criminal activities, then you associate with them, you will also become implicated. Prabhupada, yes. Sangat sanjayate kamah. तो जैसे संग वैसा आपका रंग, in short. That's why it is said we are, if I want to know what kind of person you are an average of 5 people you associate with. अगर आपको मुझे समझना है कि what kind of person you are, then you should show me your 5 friends. You are a summary, or we can say you are a kind of a, उसका आपका एक एवरेज है, 5 लोगों का आप एवरेज आप है. क्योंकि उस तरह का संग में लेते हैं तो वो उस तरह का हमको क्वालिटीज हमें आ जाएंगे. If one associate with these non-devotees, then it is very short time that one's intelligence is polluted. And one's heart is overcome by their propensities. If anyone desires to attain pure devotional service, then he should carefully give up the association of non-devotees. अभी आप बोलेंगे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या फिर हमारे कंपनी में रहते हैं, तो वहाँ पे नॉन डिवोटीज इतना सारे रहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे? See, what is the meaning of association with someone? When you आपका हार्ट को रिवील करना, that means you are associating with them. अरे पता है क्या, ऐसे मेरे जीवन में चल रहा है, आपको क्या लगता है मैंने क्या करना चाहिए? इस तरह का चीज पूछना नॉट रिक्वायर्ड. सी वी हैव आवर डिवोटी फ्रेंड्स, वी हैव आवर मेंटर्स, वी हैव आवर काउंसलर्स. उनसे आके बात करो, उनसे चर्चा करो. बट विद सच अभी इनके साथ डील कैसे करेंगे फिर? ना यू नीड टू डील विद देम. कॉलेज में आपके साथ में, प्रोजेक्ट में आपके साथ में, तो यू हैव टू डील विद देम, टॉक टू देम, नेसेसरी एक्सचेंज करो, बट कीप इट लिमिटेड. देन यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट. और उससे ऊपर का स्टेप क्या है? यू कैन गिव योर एसोसिएशन टू देम. दैट्स वो बहुत हायर स्टेज. अगर हमारा ही नैया डूब रहा है तो हम दूसरों को शायद दे नहीं पाएंगे उतना. इसलिए हमको हमारा नैया को स्टेबल करना है. स्टेबल करके देन वी कैन ऑफर दैट एसोसिएशन टू अदर्स. कुठला? 10:44:10, 10:74:40, 10:74:40. ये सारे स्लाइड मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो आप ही के लिए सब स्लाइड्स. पिछला मैं शेयर नहीं कर पाया, पर शेयर करता हूँ मैं. तो यहाँ पे प्रभुपाद इज राइटिंग अबाउट रिनाउंस ऑर्डर एंड एसोसिएशन विथ वन. तो फर्स्ट देखा आपने नॉन डिवोटी, है ना, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार्य, स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्ण भक्त आर. तो वन इज व्हाट? नॉन डिवोटीज. मैंने बोला पहले, मैं आपको चार्ट दिखाया था मैंने. संग में एक आता है संसर्ग और आसक्ति, और फिर संसर्ग में 2 आता है, नॉन डिवोटी के साथ संग करना
या फिर एसोसिएटिंग विद वुमन, तो उसका पहला हमने देखा नॉन डिवोटी से एसोसिएशन क्यों नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद के कोटेशन देखा. नाउ दिस इज अबाउट वुमन. सेकंड इज एसोसिएशन ऑफ वुमन. एसोसिएशन वुमन इज डेट्रीमेंटल. इन चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट श्रील सनातन गोस्वामी एज फॉलोज. असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्तार. अ वैष्णव शुड ऑलवेज अवॉइड एसोसिएशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. Common people are very much materially attached, especially to women. Vaishnavas should also avoid the company of those who are not devotees of Krishna. There are two types of Vaishnavas, householders and renunciates. जैसे मैंने इनिशियली बोला था, इस श्लोक के इनिशियल बोला था कि ये श्लोक में क्या है कि दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन है. तो फॉर अ हाउस होल्डर ही हैज टू स्टे विद अ वाइफ. ही कांट से अरे ये स्त्री संग मुझे नहीं करना है. ही इज वाइफ. वो सारा दैट इज ऑथोराइज बाय द स्क्रिप्चर्स. टू हैव अ वाइफ फॉर हाउस होल्डर इज ऑथोराइज्ड. बट उधर उसने क्या नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट एंटर इनटू एंगेज इनटू अडल्ट्री. मतलब प्रोपा जैसे बोले थे कि द पर्पस ऑफ सेक्स लाइफ इज फॉर व्हाट, इट्स फॉर प्रोक्रिएशन, फॉर गेटिंग द चाइल्ड, अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड. दैट्स अलाउड, ऑथोराइज्ड बाय स्क्रिप्चर्स. बट दैट्स नॉट फॉर रिक्रिएशन. रिक्रिएशन समझते हैं आप, मजा मस्ती करने के लिए नहीं है. Sex life is not for just enjoyment. It is just for, it's not for recreation, but it's for procreation. Procreation मतलब क्या? Next generation को जन्म देने के लिए. So renunciates are forbidden from speaking with any woman. By the instruction to give up the association with women, they have been forbidden from conversing with women. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Chaitanya Charitamrita, Shudra Jiva सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराह भूले प्रकृति संभाषिया. दी महाप्रभु इज नॉट इवन कॉलिंग देम एज स्त्री. महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रकृति बोल रहे हैं. हालांकि बाय नेचर ऑल ऑफ अस वी आर प्रकृति. हमारा मूल जो है आत्मा इज प्रकृति एंड कृष्ण इज पुरुष. बट महाप्रभु इज नॉट कॉलिंग स्त्री, बिकॉज स्त्री बोलने के बाद देन इट मे क्रिएट सो मेनी थॉट्स. देयर आर मेनी पर्सन विथ लिटिल in their possession who accept the renounced order of life like monkeys. See, monkey कितना renounced है, कपड़े नहीं पहनता है, फ्रूट्स खाता है, झाड़ पे रहता है. renounced है ना कितना. बट फिर देन ही हैज one dozen गर्लफ्रेंड्स. प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे है ना, सबके साथ ही wants to enjoy sex. They go here and there engaging in sense gratification and speaking intimately with women. तो महापुर ने उस चीज को किसके लिए नहीं बोला, चीज करने के लिए. To talk intimately with women is like not allowed for renunciates. अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हम मंदिर में देखते हैं काफी ब्रह्मचारी बात करते हैं माता जी के साथ, है ना, मन में आया होगा ना. पर दैट इज फॉर व्हाट, दैट टू नॉट इंटीमेटली, नॉट प्राइवेटली, इन ओपन पब्लिक स्पेस. सब लोग हैं वहां पे, सबके सामने बात करेंगे, अलग से बात नहीं करेंगे. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. या फिर कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात करना है, कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ बात करना है, तो किसी डिओटी को साथ में लेके आपके देन यू टॉक टू देम. आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना. तो बेसिकली नो मरकट वैराग्य, नो मंकी रियलाइजेशन. अब रियलाइजेशन करना है प्रॉपरली करो. फॉर अ गृहस्थास दैट्स लाइक क्या अभी व्हाट इज फॉर गृहस्थास, ये हमने रियलाइजेशन का देखा. दिस फॉर रियलाइजेट्स. Now what is for grihasthas? This is for grihasthas. Regarding the Vaishnavi, the Chaitanya Charitamrita says, Purvavata Prabhu Kaila Sabara Milan Stri Saba Dure Haila Kalina Prabhura Darshan. Shri Chaitanya Mahaprabhu received them all just as he had in previous years. The woman, however, saw the Lord from the distance. Why? Mahaprabhu sannyasi hai, he renounced order of life. That's why he should not associate with women. इसीलिए this is the prescription in regard to householder Vaishnavas. Householders should not associate with others' wives or prostitutes. They should not indulge in any association other than their own wives, according to religious scriptures. One should give up the luxurious mentality of being exclusively fond of one's wife. और एक मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, समझेगा. एक रामानुचार्य के लाइफ में देयर वाज वन पर्सन. वहाँ पे एक हेमांबा नाम की एक व्यक्ति थी.
वन शी वॉज अ माता जी, और एक उनके साथ में एक व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इमीडिएटली, क्या था, हाँ इट वॉज कुरेश। कुरेश कुरेश नाम के आपको बाद में बहुत शुद्ध भक्त बने हो, पर वो समय वो इतने अट्रैक्ट हो गए थे अपने अपने वाइफ, वो बोलता मेरे अपने जीवन में इतने सुंदर आंखें मैंने कभी देखे ही नहीं है। वो व्यक्ति इतना मतलब एडिक्ट हो गया था कि उसने वो उसके लिए छतरी पकड़ा था, पूरा धूप था बहुत, छतरी पकड़ा था, उसके आंखों के उसको सोचो, वो स्त्री इधर से आ रही है, माता जी इधर से आ रही है, और ये व्यक्ति इसे उल्टा चल रहा है, उसके उसके चेहरे को निहारते हुए, उसको छतरी पकड़ते हुए, और उसी समय वहाँ पे रंगनाथ जी का प्रोसेशन चल रहा है साइड में, रामानुजाचार्य साहब कुछ देख रहे हैं। रामानुजाचार्य बोले क्या कर रहा है ये, इधर रंगनाथ का इतना सुंदर प्रोसेशन हो रहा है, वाई ही इज सो मच मैड आफ्टर दिस वुमन, वाई सो मच मैड। और फिर अपने एसोसिएट को भेजते हैं, रामानुजाचार्य जाओ उसको बोलो कि रामानुजाचार्य बुला रहे हैं हमको। वो गए, उनका असिस्टेंट बोलता है कि कुरेश को बोलता है कि एक्चुअली रामानुजाचार्य आपको बुला रहे हैं, उसको सुना ही नहीं दे रहा है, मतलब कितना एब्जॉर्ब्ड है उसमें वो। उसने सेकंड टाइम बोला आपको जो जो महान रामानुजाचार्य आपको बुला रहे हैं, फिर उसने जोर से चिल्लाया, उसको हिला के चिल्लाया कि रामानुजाचार्य आपको बुला रहे हैं। फिर थोड़ा सा एक सेंस का अच्छा कहाँ है क्या चल रहा था, उसको सेंस हुआ। रामानुजाचार्य डोके बोले अरे आप ऐसे, इतना रंगनाथ का प्रोसेशन चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो इधर। तो बोले अरे वो बोले कि मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर आंखें किसी के नहीं देखी आज तक, हाँ मैंने किसी के भी इतने आंखें इतने सुंदर नहीं देखी है। तो रामानुजाचार्य उनको बोले अगर मैं आपको इससे कुछ सुंदर दिखाऊंगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे। हाँ। तो रामानुजाचार्य उसको लेके जाते हैं रंगनाथ मंदिर के अंदर, रंगनाथ जी का शयन आरती होता है, चल रहा है, और तब और फिर ऐसा नहीं कि बस दिखाया, रामानुजाचार्य ने प्रार्थना किया उसके, रंगनाथ जी प्लीज गिव हिम अ प्रॉपर विजन। और क्योंकि रामानुजाचार्य ने प्रार्थना किया था, जब वो आरती उनकी आंखों के सामने लेके जा रहे थे तो उनको लगा अरे ये क्या सुंदरता है, इससे सुंदर मैंने कुछ देखा नहीं अपने जीवन में। द पॉइंट इज दैट दैट पर्सन वाज सो मच फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, नीचे लिखा है लास्ट स्टेटमेंट वही लिखा है, सो मच फॉन्ड। तो रामानुजाचार्य उनको बोला कि भैया आप एक काम करो, यू गेट मैरिड विथ हर, देन दे बिकेम इतने शुद्ध भक्त बन गए, लिटरली बोल सकते हैं दोनों, वाइफ और वो। और एक बार क्या हुआ था उसमें आगे चल के एक पास्ट टाइम आता है कि रामानुजाचार्य का एक विशेष प्रेम था दोनों के लिए, बहुत उनको कृपा देते थे, बहुत उनको मतलब अपना संग भी देते थे, सब कुछ करते थे, महाप्रसाद खुद देते थे अपना। तो एक बार सारे बाकी जो डिसाइपल थे उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा है ना, इनको लेट अस प्रूव टू रामानुजाचार्य हाउ मच ही इज मटेरियलिस्टिक, प्रूव करना है हमको। और फिर बाद में कुछ तो करते हैं, फिर वो एक बार रामानुजाचार्य उनको बोलते हैं एक काम करो आप जाओ और उनके रात को जाके ना उनके घर से सारा चोरी करके लाओ। तो लोग जाते हैं, उनकी वाइफ और ये सोए वहाँ पे बेड पे अपने रात को, और फिर ये क्या करते हैं एक साइड से सारा निकाल लेते गहना उनका, और फिर ये वाइफ क्या करती है थोड़ी सी करवट लेती है और फिर ये भाग जाते हैं, अरे शायद उड़ गए लोग, चलो भागे हम पकड़े जाएंगे हम लोग करके, और जाके जाते उधर जाके फिर अगले दिन सुबह जब उठते हैं तो ये कुरेश बोलते अरे आपके आधे चेहरे पे गहने हैं आधे पे नहीं है, ऐसा क्यों। तो एक्चुअली क्या करें, अपने 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 मठ से दो ये ब्रह्मचारी लोग आए थे, शायद हो सकता है गुरु महाराज को शायद कुछ फाइनेंशियल नीड है, इसलिए उन्हें मैं एक साइड के मेरे गहने निकाले। मैं चाहती थी कि मैं शांति से एकदम विदाउट उनको पता चले मैं थोड़ा सा ऐसे करवट लेके इधर के भी निकाल पाई, इसलिए मैं ऐसा मुंह करना चाहती थी, पर फिर वो लोग चले गए। तो फिर उनको कुरेश बोलते एक काम करो इसको आप निकालो, पैक करो और जाके दे दो। और उसी के दरम्यान क्या होता है रामाचार्य और एक चीज़ करते पैरेलली, जब सारे ये उनके जो शिष्यगण जो सोए रहते ना उनके सारे धोती कुर्ते सारे एक्सचेंज कर फाड़ देते, सब लोग सुबह बौखलाते रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके दिखाते, देखो तुम्हारी धोती फट गई, तुम इतने बौखला गए, इनका सारा ज्वेलरी तुम निकाल के लेके आए, ये लोग बचा हुआ भी ला के दे रहे हैं, इनका क्या डिवोशन देखो। The point is that he wanted them not to attach to themselves. So they should not get attached to each other. Attachment should be towards, that's there with each other, but that's with Krishna in center. है ना। हम जो बस पार्टी हम लोग जाते हैं ना तो हमारे एक श्याम जगन्नाथ प्रभु है, हमारे ब्रह्मचारी एक श्याम जगन्नाथ प्रभु, तो वो हम लोग अलग अलग जगह जाते थे बस पार्टी के लिए। तो एक जगह हम गए थे, वहाँ पे काफ़ी कपल्स थे,
तो क्या बोलते थे वहां पे जाके कपल्स को बोलते थे यू शुड हैव अ डिवाइन कपल इन दिस कपल। ये कपल के बीच में, आप जो हस्बैंड वाइफ है उसके बीच में राधा कृष्ण जो डिवाइन कपल है वो होना चाहिए, मतलब हमारे जीवन का सेंटर राधा कृष्ण होना चाहिए। तो ऐसे ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सेंटर ऑफ द लाइफ शुड बी राधा कृष्ण, नॉट ईच अदर। तो ऐसा नहीं हाउस होल्डर मतलब आपने शादी कर लिया मतलब यू गॉट अ फ्री लाइसेंस, बस नाउ लेट्स गो फॉर राइड ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं है। साधु संग इज द ओनली रेमेडी फॉर prejudices. When a living entity is not bound by Maya, then by nature he is a servant of Krishna. कोई व्यक्ति जो माया में नहीं है मतलब एक्चुअली वो ही is serving Krishna. Being bound by Maya, a living entity cannot give up ancient and modern wicked prejudices. At that time, ancient wicked prejudices becomes his second nature. मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा काफ़ी सारा प्री नोशंस रहता है, जो निगेटिविटीज होती है हमारे पास में, वो काफ़ी चीज़ हमारा सेकंड नेचर बन सकता है। ओनली साधु संघ कैन रिफॉर्म द अटैचमेंट। साधु संघ इज द ओनली रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ये दिख रहा है वो नीचे, एक पास टाइम है, इसका पास टाइम है नीचे वो जो नारद मुनि का पास टाइम, जो 5 जो भक्ति वेदांत है लोग बैठे हैं और उनको जब रेमनेंट्स दिया, जब नारद बॉय ने उनको सेवा किया, उनको जब रेमनेंट्स मिला, उनके परमिशन उन्होंने लिया, वो जो संघ से उनमें परिवर्तन आया। Unless one reforms the attachment to prejudices, one cannot attain perfection in devotional service by any means. उससे हमको छुटकारा पाना पड़ेगा। Associate affectionately with pure devotees, ये उसका solution हम चर्चा कर रहे हैं अभी संगत यागात का। Association with prejudices is very dangerous. By affectionately associating with pure devotees of the Lord, one's association with prejudices is in the form of karma and jnana is destroyed. Due to the association with prejudices, a living entity's propensity for ignorance and passion becomes stronger. Whatever propensities for goodness, passion and ignorance are seen in people's eating, sleeping and sensual activities are due to association with prejudices. मतलब ये सारा हम क्या करते हैं ना, गलत लोगों के साथ जब संग ले लेके हम क्या करते हैं, हमारा एक कंसेप्शन बना लेते हैं। पर उसको अगर हमको त्यागना है तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, भक्तों के साथ संग करो। बेस्ट है शुद्ध भक्तों के साथ। अब हो सकता है सबको मिले, कई पार्ट अभी सबको मिलता है कि नहीं मिलता है शुद्ध भक्तों का संग? मिलता है ना। वो लोग क्लास जब देते हैं, मंदिर में आते हैं, या फिर आप कभी आपका मौका मिलता है सेवा करने का, उनके कपड़े वॉश किया आपने, या फिर कभी उनके लिए प्रसाद बनाया, सर्विंग किया, तो ये माध्यमों से हमको क्या होता है, दीज ऑल मीडियम्स विल हेल्प अस टू कट डाउन दिस नेगेटिविटी इज व्हाट वी आर हैविंग इन आवर हार्ट. Karmis and Gyanis disrespect Vaishnavas only due to their attachment for prejudices. Until one's attachment to prejudices is destroyed, the 10 offenses in chanting will not be uprooted. जब तक हम इसको एक पॉजिटिव अटैचमेंट के साथ डील नहीं करते हैं, we don't offer positively, till that time we will not be free of all these things. It's like a negativity basically. एक मतलब एक नोशन, हमारा व्यक्ति एक नोशन मतलब एक विचारधारा, वो विचारधारा जो होता है ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बोलता हूँ. I'll just tell you exact meaning. Let me finish this. कौन ओमकार है? Offense at the feet of sadhus is due to being proud of one's karma and jnana. The offenses in chanting in the form of blaspheming devotees enters the heart of the non-devotees and take up the residence there. Worldly attachment is contrary to the acceptance of Krishna's undisputed supremacy, and it therefore does not allow the unfortunate living being to fully surrender to the Lord. तो ये सारे कारण से वो जो जीवात्मा होता है वो भगवान को शरण नहीं आना चाहता है, अपराध के कारण हो या फिर सब नेगेटिविटी के कारण हो. One should never associate with materialistic person, for by doing so one's assets are lost and he falls from his position. असाधवी सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचन यस्मात् सर्वार्थ हानि स्याद् अध पतस् च जायते. हे वाचला मी आता आधीच. One should never associate with materialistic person, for by doing so one's assets are lost. मतलब आपका सारा चीज चला जाएगा, जो भी आपके साथ पॉजिटिविटी है, आपके अच्छे जो गुण हैं, they are lost.
इट इज़ बोथ। सी काफ़ी बार अगर आप गलत व्यक्ति के साथ में है तो ही मे अटैक यू फॉर, ही मे बिकम एनवियस ऑफ यू हैविंग समथिंग, ही मे अटैक यू फॉर दैट। So this is about Sanga Tyagat. The last is Satovritti. तो प्रभुपाद सतोवृत्ति के बारे में बहुत अच्छा चीज लिखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली आप देखेंगे वृत्ति मतलब ये लास्ट है अभी। हाँ बस 5 मिनट दे दो आपके, क्या अगली बार फिर मैं नया फोर्थ चालू करेंगे, कब तक इसको लेंगे ना। तो वृत्ति मतलब क्या? वृत्ति प्रवृत्ति बोलते हैं ना, प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब क्या? वृत्ति बेसिकली, या फिर प्रवृत्ति। वृत्ति का दूसरा और एक मीनिंग क्या पता है क्या ओमकार प्रभु? वृत्ति का और एक मीनिंग क्या है? इट्स अ जीवना, लाइवलीहुड। वृत्ति के 2 मीनिंग है, एक क्या है? प्रोपेंसिटी, दूसरा मीनिंग क्या है उसका? उसका है लाइवलीहुड। 2 चीजें उसमें आती है। तो व्यक्ति का वृत्ति है ना भाई, इसका वैश्य वृत्ति है, इसका वैश्य वृत्ति, इसलिए ये बिजनेस करता है। तो लाइवलीहुड करने के लिए जो वृत्ति चाहिए, दैट इज वन वृत्ति। एंड सेकंड वृत्ति इज, फर्स्ट वृत्ति क्या है? उसका प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी क्या है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, प्रोपेंसिटी। 2 चीज। सो बेसिकली सतोवृत्ति मतलब क्या, या फिर इसको साधु वृत्ति भी कहा गया है अलग जगह पे। टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ द प्रीवियस आचार्यस, इट्स क्वाइट सिंपल इन दैट सेंस। भक्ति मीन्स विशुद्ध सत्व, नो कंटामिनेशन में 3 मोड्स, वो भी विशुद्ध सत्व में आता है। एक्सपर्टली फिल्ड आवर 24 आवर्स, मैंने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था, वेकअप फॉर द 4 o'clock में सुबह उठिए, मंगल आरती कीजिए, भागवतम पढ़िए, जप कीजिए, है ना। और 24 आवर्स वी नीड टू एंगेज अवर सेल्फ एक्सपर्टली। एग्जाम्पल द होल मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभु ने सब चीज़ बोला है। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 4 AM, अटेंड मंगल आरती, रीड श्रीमद भागवतम, परफॉर्म कीर्तन एंड सो फोर्थ। If one strictly follows these 6 activities, one is sure to advance in devotional service. So basically हमें ये प्रभुपाद ने बहुत शॉर्ट में दिया, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कंप्लीट किया। We can divide our above mentioned 6 principles into ABCD. A for attitude, मतलब जो चीज़ आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है, उसमें क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। जो चीज़ आपका बिहेवियर जिससे आपका अफेक्ट होता है, दैट इज योर संग त्यागात। तो जिस तरह के लोगों से आप संग करोगे उस तरह का बिहेवियर आपको मिलेगा। तो इसलिए दैट इज वी हैव पुट द वर्ड बियर, बिहेवियर। सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर किससे आता है? तत्त कर्म प्रवर्तन, डूइंग दोज एक्टिविटीज विच आर फेवरेबल एंड नॉट डूइंग दोज एक्टिविटी विच आर डेट्रीमेंटल, उसको अवॉइड करके आपका कैरेक्टर बनेगा। एंड डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन कौन देगा? सतोवृत्ति, साधु का जो वृत्ति है, साधु का जो बिहेवियर है, उनको फॉलो करना है हमको। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का बिहेवियर है, वी मे नॉट इमिटेट हिम बट वी कैन एम्यूलेट हिज बिहेवियर। मतलब उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उससे हम कुछ तो जो जितना कर पा रहे हैं उसको करने का प्रयास करना अच्छे से, या फिर जितना अगर हम इतना कर रहे हैं उसको और थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास करना है। हाँ, वी कैन 100% फॉलो महाराज एज इट इज, है ना, वो तो आप मानते हैं ना सब चीज़। महाराज का रात को 1 बजे सो के सुबह 4 बजे हम आ नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम टाइम पे सो तो सकते हैं। महाराज जैसे हमको तो बहुत बड़ा लाइन तो होगा नहीं कि मिलने के लिए 100 लोग हमको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। रात को जनरली क्या होता है, रात को हमारा बात चालू होता है, बहुत अच्छा लगता है ना, मजा आता है तब बात करने में, ऐसा तो क्या रस आ रहा है, रसास्वादन होता है हमारा तब रात को। तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस सतोवृत्ति टू डू फॉलो लाइक। तो हाउ टू डू दिस? तो एटीट्यूड, बिहेवियर एंड बेसिकली थिंकिंग। तो फॉर डूइंग दिस, ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। ये राधेश्याम बुक इसमें से लिया मैंने। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो फिर ये सब चीज हो नहीं पाएगा। हाँ, देखो कंफर्ट जोन में मतलब आराम से अपने इसमें है, छोटे से जगह पे है, और अभी उसमें से बाहर निकल रही है मछली। कंफर्ट जोन से फियर जोन में आ रही है, वहाँ से लर्निंग जोन में आ रहे हैं, और वहाँ से ग्रोथ जोन में आ रहे हैं। कंफर्ट जोन में क्या होता है भाई, मेरा
इतना मेरा चीज़ें बस, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करते रहूँगा बस। कंफर्ट, उसमें कुछ हमको पिंच नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हम कंफर्ट से बाहर आते तो हमको क्या लगता है, यार मैं कैसे करूँ, अभी होगा नहीं होगा मेरे से, फियर लगता है थोड़ा सा। बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या कमेंट करेगा, उससे हम डरते हैं। दैट इज फियर जोन। एक बार फियर जोन को क्रॉस कर लिया तो फिर सीखना चालू करते हैं, डील विथ challenges and problems, acquire new skills, extend your comfort zone, and then you go into the growth zone. तो इसलिए हमको ये comfort zone से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो हमको लगता है कि हम लोग comfort zone में है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर हम लर्निंग जोन में होते तो शायद से मुझे आप लोगों का दर्शन डेली होता था। हाँ, डील विथ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, मतलब उसको डील करते करते आप भक्ति का भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को चैलेंज क्या आ सकता है सुबह, अरे मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, चैलेंज है ना। अरे मेरे को आज अभी इच्छा नहीं हो रहा है उठने का, थोड़ा ठंडी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा मैं रात को नींद हो नहीं पाया, शायद मैं 5 घंटे 55 मिनट और 30 सेकंड में सोया, मेरा भी 4 मिनट और बचा हुआ चीज़ मेरा बचा है, नींद बचा है। ये सब के साथ डील करना, ये सब के साथ डील करते उसको नहीं बोलते, उठ के आना, तभी उत्साह, निश्चय, धैर्य करके आगे चलना। अभी देखो वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आपका उत्साह कितना है। देखो जहाँ तक मेरा बात है, मुझे लगता है मैं काफी बार कंफर्ट जोन में हूँ अभी भी। देखो एक होता है कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन होता है, एक तो स्ट्रेच जोन होता है, थोड़ा सा मतलब खिंचाई होता है अपना, पैनिक जोन, 3 जोन होते हैं हमारे। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या है, इतना सारा इसमें जो लिखा है इसका समरी इतना ही है कि हमको कम से कम थोड़ा स्ट्रेच जोन में रहना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेच जोन में, मतलब हमको बहुत ज़्यादा कंफर्ट में भी नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, थोड़ा कंफर्ट ठीक है। सी कंफर्ट इज रिक्वायर्ड, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु, उसमें क्यों कहा गया युक्त, कहा गया ना युक्त करना, युक्त कंफर्ट लो। देखो आपको ऐसा कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी रात को कितने घंटे सोते थे, 2 घंटे, तो तुम है ना काम को तुम 3 घंटे सो, कोई बोलता है ऐसे? नॉर्मली हम एक ही बोलते 6 घंटे सो अच्छे से, है ना। तो 6 घंटे सोना मतलब क्या, यू आर नॉट इन कंफर्ट जोन वन सेंस, आप फिर भी एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा सा स्ट्रेच है आपको, है ना। तो थोड़ा स्ट्रेच में हमको रहना चाहिए, एरिया ऑफ नोवेल्टी हो पे काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। पैनिक में क्या होता है, बस आप पैनिक में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हो नहीं पाती है, जैसे वो व्यक्ति खड़ा है देखो, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा नीचे। तो स्ट्रेस जोन इज अ लर्निंग जोन। So 20% of people live in this category and 80% live in the comfort zone. तो आपको याद है इनिशियल में स्टार्ट किया था व्हाट इज भक्ति, व्हाई वी शुड प्रैक्टिस भक्ति, तो उसका भी है लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, वेयर वन शुड प्रैक्टिस भक्ति। ISKCON offers appropriate setup, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। One should take advantage of this opportunity to engage in bhakti, path of liberation immediately opens in such a way. ये शायद हमने लिया था। So general propensities of human beings in the mode of goodness are सत्य, दया। इस श्लोक का नाम देख लो, you can read this। इसमें कुछ गुणों के बारे में चर्चा होता है, क्या क्या ह्यूमन प्रोपेंसिटी, पॉजिटिव प्रोपेंसिटीज क्या क्या है। सत्य, सत्य बोलना, ट्रुथ से डेविएशन न करना, दया, सिंपैथी या कंपैशन, तपह, ऑस्टेरिटीज। अभी हमारे लिए ऑस्टेरिटी क्या है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एकादशी में नॉन एकादशी प्रसाद लेना, बराबर ना, एकादशी में एकादशी प्रसाद कम से कम लेना, फास्टिंग करना, या फिर जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा तो फास्टिंग करना। शौच, क्लेनलीनेस, साफ सुथरा रहना, रेगुलर बात लेना, कम से कम कहा गया कि सुबह शाम 2 बार तो लेना चाहिए, सन्यासी ने 3 बार लेना चाहिए।
बाकी ने एटलीस्ट एक बार तो लेना ही चाहिए, है ना। और खास करके जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं उसके बाद तो लेना ही चाहिए। तितिक्षा, tolerate, one should tolerate all the circumstance. Greatness of a person is to be estimated by his ability to tolerate provoking situation. प्रभुपाद जी 10th कैंटो में लिखते हैं, कृष्ण बुक में स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसा। व्यक्ति कितना ग्रेट है वो कैसे समझ में आता है, जितना टॉलरेट कर पाता है अर्जेस को अपने। इच्छा मतलब अच्छे और बुरे के बीच में व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, उसमें फर्क करना। क्षमा, कंट्रोलिंग द माइंड। दम, कंट्रोलिंग द सेंसेस। अहिंसा, नॉन वायलेंस। ब्रह्मचर्य, एटलीस्ट टिल द टाइम वन इज ब्रह्मचारी, वन शुड मेंटेन इज ब्रह्मचर्य। सब्सिक्वेंटली व्यक्ति सेक्स में कब क्यों इंडल्ज करता है, जस्ट फॉर गेटिंग द प्रोजेनी, उसके लिए। नॉट इंडल्जिंग इन सेक्स विद वुमन अदर देन वंस वाइफ, ये हाउस होल्डर के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। एंड नॉट हैविंग सेक्स विद वंस ओन वाइफ व्हेन द सेक्स इज फॉरबिडन, लाइक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सब काफ़ी डिटेल्स है उसमें वैसा है। तो उसमें हमको बेसिकली वी हैव टू रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स। त्याग, गिविंग चैरिटी, रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल है, एटलीस्ट 50% ऑफ वंस इनकम। स्वाध्याय, रीडिंग ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत। सरलता, सिंप्लिसिटी। संतोष, संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। समदर्शी, जनेर सेवा, rendering service to the saintly persons who make no distinction between people. ग्राम्य चेष्टा, हाइते निवृत्ति, not taking part in so called philanthropic activities. विप्रय हेक्षा, distinguishing unnecessary activities. फिर मौनम, being grave and silent. वार्तालाप निवृत्ति, हमेशा ऐसा हम पक 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 नहीं करने का, कभी तो थोड़ा सा मौन में रहना चाहिए। आत्म विमर्शण मतलब थोड़ा सा कंटेम्पलेशन, इन शॉर्ट कंटेम्पलेशन होना चाहिए। और इस तरह से फिर काफ़ी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, इज्जा मतलब वर्शिप, नति, दास्य, साख्यम, आत्म, इस तरह से ये गुण भक्त में होने चाहिए। ऐसे प्रहलाद महाराज से सेक्शन में ही आ रहा है, नरसिंह जयंती आ रही है अभी, इसलिए मैं ये कोट किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज, एनी क्वेश्चंस? श्रीधर पद्मनाभ प्रभु, ओमकार प्रभु। No, Prabhuji, late join. Prabhuji, in any case, it is not possible to take classes in evening. अरे अभी इतना डिस्कशन हो गया ना भैया, अभी आधा क्लास हमने लास्ट टाइम किया था, उसमें कौस्तुभु आए थे, स्वयं आए थे। उनसे बात कर लो एक बार, इफ ही हैज सम सॉल्यूशन, है ना। Yes, हरी हरी। sir. Hare. उनको क्या बोलना था, क्या बोल रहे थे श्रीधर को कि शाम को क्यों है? इस शाम को आज महाराज का प्रोग्राम था सुबह कुंज बहरी में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का स्मृति सभा था वहाँ पे। नहीं, मैं गया था प्रभुजी वहाँ पे। आप गए थे ना, तो इसलिए हमने शाम को किया ब्रो, अदरवाइज हमारा टाइमिंग तो फिक्स है सुबह में। सुबह में 10 to 12 ना। या सी इफ यू हैव एनी ऑप्शन, इफ यू फील दैट यू वांट टू डिस्कस, आप कौस्तुभु से बात कर लीजिए, फिर वी आर ओके। चलेगा प्रभुजी, आई विल मीट प्रभुजी। ओके, हरि बोल। Yes, Prabhuji, thank you.